Okay. तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने we started our discussion on multi-rate DSP. उसमें यही था कि we said के will cover three main topics. What are those? सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास we call it decimation, and then the next topic in line is interpolation, and finally another important topic is polyphase decomposition. तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो पहली चीज़ है we discussed the first item which was decimation. This process is also called downsampling. So let me do a quick recap of what we did last time. Okay, so we considered this conceptual block diagram. हमने कहा कि we have a signal of interest x of n, of course a discrete time signal, and we want to reduce its sampling rate by a factor of capital M. तो ये जो down arrow है तो that means कि we want to reduce the sampling rate. हम sampling period बढ़ा रहे हैं और sampling rate decrease कर रहे हैं by a factor of M, capital M, and we get at the output a decimated signal जिसकी वजह से हम subscript use करते हैं D. तो ये वो चीज़ है यानी कि which is the starting point of decimation, और इसमें फिर we were able to relate the input and output by means of this simple relationship. We said कि अगर हम x को selectively sample करें इस तरह से, ये जो mn indices पे जो x की values हैं they correspond to xt of n. So this was an important relationship time domain में which we derived, and that relationship helps us to compute the samples of the decimated signal from the samples of original discrete time signal. तो अगर आपको time domain में एक x of n given हो और आपने xt of n sketch करना हो तो you can use this relationship. तो of course ये time domain relationship है, and we had presented and we had discussed the corresponding frequency domain relationship as well, कि जो decimated signal है उसकी जो DTFT है उसकी जो Fourier transform है, how is it related to the Fourier transform of the original discrete time signal. So what were the relationship? Let me write it here. So these relationships will be given to you, and your responsibility will be to interpret them and to use them in the right way. So these were the relationships कि original discrete time signal और decimated signal how are they related in time domain, और फिर ये कि उनकी जो Fourier transforms हैं how are they related to each other. तो ये relationships हम लोगों ने derive किए थे. We didn't really derive them. I just wrote these expressions and we started to utilize them. तो इसकी derivation जो है it was supposed to take time, so that's why we avoided it. तो फिर नेक्स्ट हमने यानी कि इसी डिस्कशन को हमने इवॉल्व किया था, एंड वी सेड के जो हमने जो अभी थोड़ी देर पहले जो ब्लॉक डायग्राम बनाई है तो दैट ब्लॉक डायग्राम इज नॉट कंप्लीट, इट हैज समथिंग मिसिंग. तो अब जो मिसिंग आइटम था वो फिर हम लोगों ने लिखा. ओके तो यानी कि दिस इज द ब्लॉक डायग्राम वी हैव व्हेन वी थिंक अबाउट द डेसिमेशन. ठीक है, जब हम डेसिमेशन के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो इस तरह की ब्लॉक डायग्राम हमारे ज़हन में आती है. लेकिन व्हेन वी वर डूइंग एग्जांपल्स सो वी ग्रेजुअली गॉट टू नो कि decimation is all about decrease in sampling rate.
तो अगर आप सैम्पलिंग रेट डिक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी अ लिमिट, या एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप सैम्पलिंग रेट को नीचे मजीद नीचे लेके जाएंगे तो यू माइट एंड अप हैविंग एलियसिंग। तो एलियसिंग हो सकती है, तो जिसकी वजह से फिर इट वाज एडवाइजेबल कि हम इन एनी केस हम एक लो पास फिल्टर इस्तेमाल करें, और जो सैम्पल्स को जो ड्रॉप करने वाला मामला है वो हम बाद में करें। And then we settled with this particular block diagram, और यानी कि we declared कि जो second जो block diagram है तो that is the complete one। यानी कि अगर आपने एक अच्छा और मीनिंगफुल डेसीमीटर बनाना है या एक अच्छा और मीनिंगफुल डाउन सैम्पलर बनाना है तो ये जो सेकंड ब्लॉक डायग्राम है ये आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। यानी कि आपको लो पास फिल्टर भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए और फिर आपको सैम्पल्स ड्रॉप करने चाहिए। तो लो पास फिल्टर के लिए आपको कौन सी एक चीज चाहिए? जस्ट नीड वन थिंग which is the cutoff frequency, and cutoff frequency for a decimeter system is advised to be pi over m। ओके, और तो ये जो जब आप सैंपल्स ड्रॉप करते हैं इस ब्लॉक को आई थिंक दे कॉल इन द टेक्स्ट बुक एक्सपेंडर। तो नेम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ ये कि समथिंग दैट इज बीइंग यूज्ड इन द टेक्स्ट बुक, तो मैं वो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ओके, सो दैट वाज द स्ट्रेटजी कि अगर आपने डेसिमेशन करनी है इफेक्टिवली सिस्टमेटिकली तो सबसे पहले आप जो है वो अपने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट को एक लो पास फिल्टर में से पास करेंगे जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पाई ओवर एम है, और उसके बाद फिर आप जो है उसको एक्सपेंडर ब्लॉक से पास करेंगे कि जो जिसमें आप सैंपल्स को थ्रो अवे करते हैं। तो एक्सपेंडर ब्लॉक क्या करता है? इट जस्ट थ्रोज अवे कितने सैंपल्स? कैपिटल M माइनस 1 सैंपल्स आउट ऑफ एवरी कैपिटल M सैंपल्स। तो आप यानी कि सैंपल्स जो हैं उनको बैच में देखते हैं, यानी कि हर दफ़ा एक चंक लेते हैं सैंपल्स का, उनमें से एक सैंपल रिटेन करते हैं और M-1 सैंपल्स जो है वो डिस्कार्ड करते हैं। और जो बैच प्रोसेसिंग जो आप कर रहे हैं वो कैसे करते हैं? यू स्टार्ट विद इंडेक्स 0। तो जो भी आपका सिग्नल होगा जिसमें से आपने सैंपल्स थ्रो अवे करने हैं तो आप उस सिग्नल के 0 टाइम इंडेक्स से आप देखना स्टार्ट करेंगे। यू विल मार्क इट एज योर रेफरेंस, और 0 टाइम इंडेक्स पे जो सैंपल होगा यू विल रिटेन इट, you will throw away the next capital M-1 samples and then you will retain one sample, और फिर उससे आगे M-1 sample discard करेंगे, फिर एक sample retain करेंगे, फिर M-1 samples discard करेंगे। तो that's the thing। और filtering क्योंकि आप पहले कर चुके हुए हैं by लो पास फिल्टर जिसकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी अप्रोप्रिएट है, पाई ओवर एम है। क्योंकि अगर आपने सैम्पलिंग रेट को डिक्रीज करना है बाय अ फैक्टर ऑफ कैपिटल एम तो जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो पाई ओवर एम होनी चाहिए, यानी कि दैट इज समथिंग विच वी नीड टू काइंड ऑफ एब्जॉर्ब। तो ये वो चीज़ है जिसको हमें डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है कि वाकई यही कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बनती है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जब आप प्री फिल्टरिंग कर लेंगे डेसिमेशन से पहले तो उससे ये होगा कि आपका जो सिग्नल है इफेक्टिवली आपने उसकी बैंडविड्थ रिड्यूस कर दी है, क्योंकि पहले जो भी आपके सिग्नल की बैंडविड्थ थी और जिस भी रेट पे अब आपने सैम्पलिंग की थी, जब आप सैम्पलिंग रेट को बाय फैक्टर ऑफ m डिक्रीज कर रहे हैं तो आपको एक तरह से जो अपना सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट है उसकी बैंडविड्थ भी इफेक्टिवली बाय फैक्टर ऑफ m डिक्रीज करनी है सो दैट के एलियसिंग ना हो। तो ये जो लो पास फिल्टर है दैट एग्जैक्टली डज दैट कि इस प्री फिल्टरिंग की वजह से आप एलियसिंग अवॉइड कर रहे होते हैं। तो ये पाई ओवर एम क्यों है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी? वंस अगेन यानी कि इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको एम्फसाइज करने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास कैपिटल ओमेगा एक्सेस है, ठीक है, और यहाँ पे टिपिकली हम जो CTFTs वगैरह हैं वो प्लॉट करते हैं, यानी कि एक्स जे ओमेगा फर्ज किया या एक्स सी जे ओमेगा, और इसी तरह से ये मेरे पास एक स्मॉल ओमेगा के अगेंस्ट प्लॉट है जहाँ पे टिपिकली आई विल बी प्लॉटिंग एक्स सी टू जे ओमेगा। लेकिन अभी इस वक्त हमारे पास हमें इनके स्केचेस में इंटरेस्ट नहीं है, हमें जो एक्स एक्सेस पे जो मार्किंग है हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। या चलें थोड़ी देर के लिए हम ये बना लेते हैं कि मेरे पास एक सिग्नल है एक्स सी ऑफ टी, उसकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो इट लुक्स लाइक दैट। ठीक है,
तो जब आप इस पर्टिकुलर एक्सी जे ओमेगा को जब आप सैंपल करेंगे तो उसका स्पेक्ट्रम आपको किस तरह से नजर आएगा? ये जो सेम स्पेक्ट्रम है इट विल गेट रिपीटेड, ठीक है। और अभी जिस तरह से मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ तो आई हैव सर्टेन assumption इन माय माइंड अबाउट द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। तो जो ओरिजिनल कॉपी है वो कहाँ पे सेंटर्ड है? इट इज सेंटर्ड एट 0। और ये कौन सा सिग्नल हम देख रहे हैं? एक्स एस जे ओमेगा, जो कि सैम्पल्ड सिग्नल है। और जो राइट साइड पे पहली कॉपी है वो कहाँ पे सेंटर्ड है? इट इज सेंटर्ड एट ओमेगा एस। लेफ्ट साइड पे जो पहली कॉपी है वो कहाँ पे सेंटर्ड है? माइनस ओमेगा एस। और ये जो मिडिल में जो ओरिजिनल कॉपी है वो राइट साइड पे कहाँ पे एंड हो रही है? कैपिटल ओमेगा एन पे। और लेफ्ट साइड पे कहाँ पे एंड हो रही है? माइनस ओमेगा एन पे। और इसी तरह से राइट साइड पे जो हमारे पास पहली शिफ्टेड कॉपी है तो वो लेफ्ट साइड पे कहाँ पे एंड हो रही है? ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? व्हाट इज दिस पॉइंट? ओमेगा एस माइनस ओमेगा एन। और इसी तरह से जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? ओमेगा एस प्लस ओमेगा एन। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ ये कि ओमेगा एस जो है दैट इज सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इट्स काइंड ऑफ अ स्पेशल नंबर। इट टर्न्स आउट टू बी 2 पाई ओवर टी। 2 पाई ओवर टी कहाँ से आ रही है? 2 पाई एफ एस, और एफ एस इज 1 ओवर टी, तो 2 पाई ओवर टी आ जाता है। तो जब आप ओमेगा एस बाई 2 करते हैं सैम्पलिंग रेट का हाफ, तो व्हाट नंबर डू यू गेट? पाई ओवर टी। और जो नाइक्वेस्ट क्राइटेरियन था व्हाट डज इट से? कि ओमेगा एस जो है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल ओमेगा एन, ठीक है। ये नाइक्वेस्ट क्राइटेरियन था। और जब आप ओमेगा एस को सेट करते हैं इक्वल्स टू ओमेगा एन, यानी कि आप इक्वालिटी चूज कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ इनइक्वालिटी, तो देन दिस थिंग इज गिवन अ स्पेशल नेम। व्हाट इज दैट नेम? इसको हम कहते हैं कि नाइक्वेस्ट रेट। यानी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि कई एग्जांपल्स में एंड प्रॉब्लम्स में कई जगहों पे आपको बताया गया होगा कि आपका जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट है तो दैट इज बीइंग सैम्पल्ड एट नाइक्वेस्ट रेट। तो नाइक्वेस्ट रेट पे सैम्पलिंग का क्या मतलब है कि वट एवर इज योर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, आप जो अपनी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है उसको उसका ट्वाइस सेट कर देते हैं। यानी कि यू सेट ओमेगा एस इक्वल्स 2 टाइम्स ओमेगा एन। जब आप नाइक्वेस्ट रेट पे होते हैं तो उस टाइम इसी रिलेशनशिप को आप इन्वर्ट भी कर सकते हैं कि दैट टेल्स मी के माय ओमेगा एन क्या है? दैट इज ओमेगा एस बाय 2। तो ये जो रिलेशनशिप जिसको इस वक्त मैं बॉक्स कर रहा हूँ ये कब होता है? ये रिलेशनशिप कब ट्रू होता है? सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब आप नाइक्वेस्ट रेट पे सैम्पलिंग कर रहे हो। जब आप नाइक्वेस्ट रेट पे सैम्पलिंग करते हैं तो तब आपके पास जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज ट्वाइस योर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, या जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है यानी आपकी बैंडविड्थ है दैट इज हाफ द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज़ है। तो अब मैं इस चीज़ पे वापस आता हूँ। ये जो नंबर्स हमने लिखे थे, हमने कहा कि ओमेगा एस जो है दैट इज 2 पाई ओवर टी, और फिर हमने कहा कि ओमेगा एस बाई 2 दैट इज पाई ओवर टी। लेकिन जब नाइक्वेस्ट रेट पे सैम्पलिंग हो रही हो तो ओमेगा एस बाई 2 कौन सी चीज़ है? दैट इज कैपिटल ओमेगा एन, ठीक है। तो ये अब हमारे पास कुछ नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि जो आप कह लें कि अगर हम इनको एक दफ़ा काइंड ऑफ मेमोराइज कर लें तो थिंग्स बिकम इजी, और अगर हम इनको इग्नोर करते रहें तो देन थिंग्स बिकम टफ। तो ये चीज़ के ओमेगा एस हमें पता है कि 2 पाई ओवर टी है। और कैसे है? क्योंकि इट वाज 2 पाई एफ एस और एफ एस वाज 1 ओवर टी, तो इस वजह से 2 पाई ओवर टी आया। तो ओमेगा एस का हाफ जो है दैट इज पाई ओवर टी, लेकिन ओमेगा एस का हाफ जो है दैट इज ऑल्सो ओमेगा एन। कब? जब आपके पास जो सैम्पलिंग है वो नाइक्वेस्ट रेट पे हो। तो ये चीज़ है। और फिर जब आप इनके स्मॉल ओमेगा में काउंटर पार्ट्स देखते हैं तो वो कैसे होंगे? स्मॉल ओमेगा एस किसके इक्वल होगा? कैपिटल ओमेगा एस टाइम टी, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई। और इसी तरह से स्मॉल ओमेगा एस बाई 2 किस चीज़ के इक्वल होगा? पाई। और स्मॉल ओमेगा एस बाई 2 कौन सी चीज़ है? ओमेगा एन, ठीक है। तो यहाँ से अब आप जो है वो यानी जो चीज़ मैं कन्वे करना चाह रहा था उसको आप देखें कि जब आप DTFT के प्लॉट्स देख रहे होंगे तो 2 पाई
आप कह लें कि लिमिट इन द सेंस के 2 पाई पे आपकी जो शिफ्टेड कॉपी है इट शुड बी सेंटर्ड, ठीक है। और इसी तरह से DTFT के केस में पाई आल्सो बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट नंबर। क्यों? क्योंकि पाई जो है दैट रिप्रेजेंट्स ओमेगा एन, दैट मीन्स के आपकी जो यानी डिस्क्रीट टाइम के केस में आप देखें तो 2 पाई पे आपकी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है और वहां पे आपकी शिफ्टेड कॉपी सेंटर्ड होनी चाहिए। और फिर ये कि जो आपका जो ओरिजिनल सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है, जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो पाई से इंक्रीज नहीं कर सकती है, ठीक है। तो दैट्स द थिंग, यानी कि जो भी आपका सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट है उसकी जो मीनिंगफुल फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो 0 और पाई के दरमियान रहने चाहिए, क्योंकि पाई से ऑनवर्ड जो है फिर आपके पास आपने जगह देनी है शिफ्टेड कॉपी को। अगर आपका अपना सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट पाई से एग्जीड करेगा उसकी बैंडविड्थ DTFT के केस में, तो लीकेज होगी, जिसको हम एलियसिंग कहते हैं, और जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन, और यानी कि उसको जैसे मर्जी बोल लें लेकिन इवेंचुअली इट इज अ डिजायरेबल फिनोमेना, ठीक है। तो पाई आपके पास एक तरह से हार्ड लिमिट है कि आपका जो भी सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट है उसका स्पेक्ट्रम DTFT वो पाई से एग्जीड नहीं करना चाहिए। और फिर जब आप कह रहे हैं कि डेसिमेशन के केस में कि आप एक नया सैम्पलिंग पीरियड इंट्रोड्यूस करते हैं T प्राइम विच इज रिलेटेड टू द ओल्ड सैम्पलिंग पीरियड इन दिस वे T प्राइम इक्वल्स MT, तो उस केस में क्या मामला हो रहा है कि इफेक्टिवली आपका सैम्पलिंग रेट रिड्यूस हो रहा है बाय फैक्टर ऑफ कैपिटल M, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप उस फ्रिक्वेंसी डोमेन प्लॉट को देखें, यानी कि फ्रिक्वेंसी डोमेन रिलेशनशिप को देखें, लेट मी राइट इट अगेन कि डेसिमेटेड सिग्नल का जो स्पेक्ट्रम है, how is it related to the spectrum of original discrete time signal, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप था जो हमने अब तक कई दफा लिख लिया हुआ है, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को अगर आप देखें तो आपको ये पता चलता है कि ओरिजिनल जो स्पेक्ट्रम है XE to j ओमेगा, उससे आपने डिस्क्रीट डेसिमेटेड सिग्नल का स्पेक्ट्रम कैसे बनाना है, आपको फ्रीक्वेंसी स्केलिंग करनी है। यानी हर जो कॉपी है, हर इंडिविजुअल कॉपी में क्या मामला हो रहा है कि E to j ओमेगा, अगर आपके पास इफ दैट वाज द ओरिजिनल सिचुएशन, तो अब आप क्या कर रहे हैं, जहां जहां E to j ओमेगा था तो वहां पे ओमेगा को आप ओमेगा बाय M से चेंज कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी स्केलिंग हो रही है। और क्योंकि जो M है, M सिंस इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये जो स्केलिंग है तो ये इस तरह की स्केलिंग है कि जैसे x ऑफ t, अगर आपके पास कोई टाइम डोमेन सिग्नल हो, आप उसकी स्केलिंग करें विद फैक्टर a, और इस पर्टिकुलर केस में a किस तरह का है, a लाइज बिटवीन 0 and 1। इस पर्टिकुलर केस में जो आपके पास ये जो फ्रिक्वेंसी स्केल्ड कॉपीज हैं, तो ये किस तरह से रिएक्ट करेंगी, यानी E to j ओमेगा बाय M का क्या मतलब है कि x E to j ओमेगा बाय M, यानी हाउ विल इट लुक लाइक, इट विल एक्चुअली एक्सपैंड। तो जो भी आपका प्लॉट है वो एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिवली जो x एक्सेस है इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M। तो जब आपके पास एक्सपेंशन होनी है डेसिमेशन बाय M करके, तो ये जो ओरिजिनली आपके पास जो हार्ड लिमिट थी जो कि पाई पे थी, तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा, यानी आप कह रहे हैं कि आपके सिग्नल की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है DTFT के केस में वो पाई है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले मोटिवेट किया है। जब आप डेसिमेशन बाय M करेंगे तो पाई वाली चीज मल्टीप्लाई होकर कहाँ पे चली जाएगी, पाई बाय M पे। तो जिसकी वजह से फिर आप ऑलरेडी जो है वो अपनी बैंडविड्थ को श्रिंक करके पाई बाय M पे लाते हैं, ठीक है, सो दैट के आप जो है वो पाई से एक्सीड ना कर सकें। तो दैट्स द मोटिवेशन, किस चीज के लिए, जो फिल्टर आप यूज करते हैं with cutoff frequency pi over M। मिनट लगा के जो डिस्कशन की है वो इस चीज पे की है कि एक डेसिमेटर सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 ब्लॉक्स जो कि कैस्केड में लगे होते हैं, और ये जो पहला ब्लॉक है दैट इज अ लो पास फिल्टर विद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पाई ओवर M। तो हम इस चीज को मोटिवेट कर रहे थे कि पाई ओवर M जो है इट्स नॉट आर्बिट्रेरली चूजन, ठीक है। तो इसको हमने केयरफुली चूज किया है, और किस तरह से चूज किया है, सो दैट के
हमारे पास जो डेसिमेशन है, डेसिमेशन के टोटल प्रोसेस से गुजरने के बाद देयर इज नो एलियासिंग, यानी हम ये करते हैं कि हमारे पास जो भी सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट होता है हम सिंपली उसकी बैंडविड्थ रिड्यूस कर रहे होते हैं बाय मींस ऑफ लो पास फिल्टरिंग, सो दैट कि अगर हम उसको कम रेट पे भी सैंपल करें तो जो शिफ्टेड कॉपीज हैं वो आपस में मिक्सअप ना हो। तो अगर आप किसी सिग्नल की बैंडविड्थ रिड्यूस कर रहे हैं बाय फैक्टर ऑफ एम, तो ऑफ कोर्स इट्स आल्सो अ सेक्रीफाइस कि आप उसके कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स लूज कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि ये जो प्रोसीजर है, ये जब आप एक दफा हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स क्लिप कर देते हैं तो देन इट रिजल्ट्स इन नो एलियासिंग, तो प्रोसीजर जो है इट बिकम्स साइंटिफिकली करेक्ट। फिर आखिर में जो चीज़ आती है आप कह लें आखिर में जो बर्डन रह जाता है वो डिज़ाइन इंजीनियर पे होता है कि जब भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट होगा जिसके लिए आप ये डेसिमेशन वगैरह कर रहे होंगे, वहाँ पे आपको इसकी इम्प्लीकेशंस देखनी पड़ेंगी कि अगर आप प्री फिल्टरिंग की वजह से कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स लूज कर रहे हैं तो हाउ हैवी और हाउ मच सिग्निफिकेंट दैट लॉस इज। ठीक है, चाहे आपके पास कोई रिडार का डेटा है और चाहे आपके पास यू हैव सम अदर काइंड ऑफ डेटा, तो आपने उसमें ये जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आप लूज करते हैं उनकी वजह से कितना लॉस हुआ है वो आपने खुद इनकी क्वांटिफाई करना होगा बीइंग एन इंजीनियर। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। Okay, let me see कि how many people are there by now. लोग अभी भी कम हैं। Okay, maybe you guys are overworked. लेकिन there is nothing much I can do about the situation. Anyway, यहाँ पे at this point I want to let all of you guys know कि जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो डिसीजन हुआ है रिगार्डिंग मिड टर्म एग्जाम, तो आई वांटेड टू let you guys know. Originally you guys were supposed to take your midterm exam next week, ठीक है, but now it's postponed by 1 week. That means के next week is on for classes. तो otherwise हमारे पास ये week जो था that was the last week before the midterm exam, but now we have one more week. So that means के 2 मजीद लेक्चर ऐड होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि मोस्ट लाइकली जो आपके इन पर्सन मिड टर्म एग्जाम्स थे तो दे आर नाउ गोइंग टू बी कैंसल। तो उसके बजाय जो चीज़ आपके पास अल्टरनेट जो स्ट्रेटेजी आ रही है तो वो ये है कि यू गाइस विल डू योर एग्जाम्स ऑनलाइन। जो आप लोगों के मिड टर्म एग्जाम्स हैं दे विल बी स्केड्यूल्ड ऑनलाइन जैसे आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में किए हैं। तो कीप दैट इन माइंड। एक तो ये कि एग्जाम्स एक वीक पोस्टपोन हो गए हैं, दूसरा ये कि दे विल बी हेल्ड ऑनलाइन, so you guys are not supposed to come to the campus. अब वो ऑनलाइन एग्जाम्स में सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव में किस तरह का स्प्लिट हमें करना होगा दैट इज स्टिल अंडर डिस्कशन, सो स्टे ट्यून्ड। बट जो अपडेट अवेलेबल थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो दैट आल्सो रिमाइंड्स मी के कमिंग वीक में मेरे ख्याल में जो आपकी मंडे में जो रेगुलरली स्केड्यूल्ड स्लॉट है उसमें I will request the TA to hold a tutorial session, और उसमें मेरे ख्याल में 2 चीज़ें हैं हमारे एजेंडा पे। either he can talk about the contents of chapter 4 जो मल्टी रेट DSP जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम है और डेसिमेशन इंटरपोलेशन और पॉलीफेज डिकम्पोजिशन पे तो अभी हम नहीं पहुंचे हैं। और he can discuss the contents or maybe the solutions of homework 1 and homework 2. Okay, homework 1 और homework 2 में जो questions थे, I think he will not be able to go through each and every question, each and every part. So you can ask him, you can request him कि selectively कि फलां question का फलां part जो है वो आप लोगों को attempt करके दिखाएं। Or you can just discuss specific queries कि you guys have already gone through it, कोई चीज़ आपने सॉल्व की है और उसमें कोई पर्टिकुलर स्टेप या किस चीज़ में मसला है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। इन शॉर्ट ये है कि जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल सेशन है विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड नेक्स्ट मंडे, तो उसमें चैप्टर 4 डिस्कस करना है या फिर होमवर्क 1 और होमवर्क 2 की क्वेरीज आप लोगों ने डिस्कस करनी है, दैट्स अप टू यू गाइस, बट प्लीज लेट द टीए नो इन एडवांस सो दैट ही कैन प्रिपेयर द राइट थिंग। तो आप लोग जो है वो मे बी थर्सडे से पहले जो है वो आप टीए को इंटीमेट कर दें बाय राइटिंग ईमेल और विजिटिंग हिम in person or writing your suggestions on Google Classroom.
Okay, it's now time to move to the next topic, which is related to what we have discussed so far. That's called interpolation. We also call it upsampling. Okay, तो अब इसमें क्या मामला है कि नाइवली जब हम ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो we think about a system which increases the sampling rate of a signal of interest by a factor of capital L. तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास ये है. Let me redraw the same block diagram for clarity कि हमारे पास एक सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट x of n है. हम उसका जो सैम्पलिंग रेट है वो कैपिटल L के फैक्टर से हम इंक्रीज कर रहे हैं. दैट मीन्स के सैम्पलिंग जो रेट है वो हम एक्चुअली डिक्रीज कर रहे हैं. जो नया सैम्पलिंग रेट बनेगा, नया सैम्पलिंग पीरियड होगा, लेट्स कॉल इट t प्राइम. So how is it related to the old sampling period, that is capital T divided by capital L? और कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं. एक तो वही कि x of n आप लोगों ने कैसे ऑब्टेन किया था फ्रॉम xc of t, कि xc of t में you substituted small t equals n times capital T. इसी तरह से अब आप जो है वो x I of n जो इंटरपोलेटेड सिग्नल है उसको डायरेक्टली भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द कंटिन्यूस टाइम सिग्नल. कैसे? कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में t को सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे आप, n कैपिटल T प्राइम, और फिर आप इसको थोड़ा सा फर्दर एलाबोरेट कर सकते हैं कि xc n कैपिटल T डिवाइडेड बाय कैपिटल L. और फिर जब आप यहाँ पे जिस चीज़ को मैं इक्वेशन 1 कह रहा हूँ और जिस चीज़ को मैं इक्वेशन 2 कह रहा हूँ, जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो टर्न्स आउट के जो xi of n है, हाउ इज इट रिलेटेड टू माय ओरिजिनल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. यानी अभी जो हमने इक्वेशन 2 लिखी है तो दैट मीन्स कि आपने अगर इंटरपोलेशन करनी है तो आप अपना जो ओरिजिनल कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है उसको रीसैम्पल कर लें. लेकिन टिपिकली जब हम इंटरपोलेशन या डेसिमेशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है, तो हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को ही जो है वो यूज करना चाह रहे होते हैं फॉर ऑल ऑपरेशन. यानी एक दफा जब हमने सैम्पलिंग कर ली तो हम वापस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल पे नहीं जाते हैं. यानी वी वांट टू डू इंटरपोलेशन और डेसिमेशन यूजिंग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग. तो एक्स ऑफ एन जो है, जो इंटरपोलेटेड सिग्नल है, इसको हम ओरिजिनल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से जब हम रिलेट करते हैं तो वी गेट दिस रिलेशनशिप. और इसको अगर आप साइड बाय साइड लिखना चाहें कि डेसिमेशन के केस में आपके पास क्या मामला था कि जो डेसिमेटेड सिग्नल था इट वाज एक्स जिसकी इंडेक्सिंग आप कैसे कर रहे थे, कैपिटल एम टाइम एन. तो ये हमने साइड बाय साइड भी लिख दिया ताकि हम कंट्रास्ट या कंपैरिजन भी कर लें. ओके, तो अब थोड़ा सा हम जो है वो इसको यानी कि थोड़ी सी हम इस पे स्केचिंग कर लेते हैं. तो ये हमारे पास एक फर्जी सिग्नल है एक्स ऑफ एन, वो हमने स्केच किया है, ठीक है. और अब हम एक और सिग्नल स्केच करना चाह रहे हैं विच इज द इंटरपोलेटेड सिग्नल, ठीक है. ये जो एक्स ऑफ एन है वी पास्ड इट थ्रू दिस इंटरपोलेशन ब्लॉक. इसको कई दफ़ा हम ओके, आई एम नॉट श्योर कि मैं मिक्स कर रहा हूँ, लेकिन खैर नेमिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. मेरे में इस ब्लॉक को एक्सपेंडर कहते हैं और वो जो दूसरा जो ब्लॉक है उसको कंप्रेसर कहते हैं. तो मैंने पिछली किसी स्लाइड में शायद उसको एक्सपेंडर लिखा है. तो वंस अगेन नेमिंग कन्वेंशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट. यानी कि ये जो कैपिटल एल से आपने सैम्पलिंग रेट बढ़ाना है या कैपिटल एम से आपने सैम्पलिंग रेट डिक्रीज करना है, तो आप इसको जैसे मर्जी कह सकते हैं. आप इनको डाउन सैम्पलर या आप सैम्पलर ब्लॉक्स भी कह सकते हैं. ओके, तो एक्स ऑफ एन जो है वी अप्लाई एज इनपुट टू द इंटरपोलेटर ब्लॉक या आप सैम्पलर ब्लॉक. आउटपुट पे जो आपको सिग्नल मिलता है दैट इज एक्स आई ऑफ एन. तो टाइम डोमेन में आप ये सिग्नल कैसे बनाते हैं, इनके टाइम डोमेन में इंटरपोलेशन क्या मतलब है कि जीरो इंडेक्स पे जो सैंपल है वो तो आपने रिटेन करना है, जो हम हमेशा बात करते हैं, इनकी दैट इज योर रेफरेंस. उसके बाद आपने क्या करना है इस पर्टिकुलर केस में, इंटरपोलेशन के केस में हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि अपेंड
capital L minus 1 zeros after या यूं लिख लेंगे between every two consecutive samples। कोई से भी दो consecutive samples हैं तो उनके दरमियान आप कैपिटल L माइनस 1 जीरोस आप जो है वो अपेंड करते हैं। और कैसे? स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स ऑफ जीरो, जो आपके जीरो इंडेक्स पे जो सैंपल है वहां से आप स्टार्ट करते हैं। जीरो इंडेक्स पे जो सैंपल है वो रिटेन करें, उसके बाद जो है वो आप दो जीरो वैल्यूड सैंपल्स अपेंड करें, उसके बाद जो नेक्स्ट सैंपल है वो लेके आए, ठीक है। और इस तरह लेफ्ट साइड पे भी है कि आप पहले दो जीरो वैल्यूड सैंपल्स अपेंड करें और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट सैंपल लेके आए। तो अगर मैं यहाँ पे आई डिड नॉट मेंशन कि व्हाट कैपिटल एल वाज, लेकिन जैसे अब मैंने इम्प्लिसिटली दो जीरोस अपेंड किए हैं बिटवीन एवरी टू कंसेक्टिव सैंपल्स, तो दैट टेल्स मी के जो कैपिटल एल मैंने यूज किया तो दैट वाज 3, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज द सैम्पलिंग रेट बाय अ फैक्टर ऑफ 3। तो अब भी आपके पास एक्स एक्सेस पे जो वेरिएबल है दैट इज एन, उसमें भी कि मिडिल में जो इंडेक्स है वो जीरो है, यहाँ से हमने जिसको रेफरेंस बना के शुरू किया था, और बाकी इंडेक्सिंग आप कर सकते हैं। तो यू कैन सी कि अब हमने आर्टिफिशियली कुछ सैंपल्स जो हैं वो एम्बेड कर दिए इनटू आवर ओरिजिनल सैंपल्स। अभी के लिए जीरो वैल्यूड है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली तो हम जब इंटरपोलेशन करना चाह रहे होंगे नॉन जीरो सैंपल्स के साथ, तो हम चाह रहे होंगे कि कुछ मीनिंगफुल सैंपल्स जो हैं वो एम्बेड करें। फॉर एग्जांपल कि अगर हम जो है लीनियर इंटरपोलेशन करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे कि हर जो दो कंसेक्टिव सैंपल्स हैं उनको हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे लीनियर इंटरपोलेशन के केस में। और फिर जो हमारे पास जो मिसिंग सैंपल्स हैं, जो नए सैंपल्स हमने ऐड किए हैं, तो वो कौन से होंगे? तो ये जो वैल्यूज हैं इनके वैल्यू ऑफ दैट वैल्यू ऑफ द स्ट्रेट लाइन एट n इक्वल टू, इसी तरह से यहाँ पे भी मामला होगा। तो ये काम जो है दैट विल बी कॉल्ड लीनियर इंटरपोलेशन। तो आपके सामने है कि अगर आप सिंपली हर दो कंसेक्टिव सैंपल्स के दरमियान जीरो वैल्यूड सैंपल्स एम्बेड कर रहे हैं, तो ये जो भी हमने रेड वैल्यूड सैंपल्स बनाए हैं तो ये कहाँ से आएंगे? ये तो यानी कि बिला वजह तो नहीं आएंगे, मतलब यानी कि वी नीड टू डू सम एफर्ट। तो वो एफर्ट फिर कैसे होती है? यानी कि वो एफर्ट ये होती है कि एक तो ये कि आप ये जो कैपिटल एल के साथ आप एरो मैंने बनाया हुआ है, ये ब्लॉक क्या करता है? ये जीरोस अपेंड करता है। तो जब आपने जीरोस अपेंड कर लिए देन यू पास योर आउटपुट थ्रू अ लो पास फिल्टर। और वो जो लो पास फिल्टर है, जब हमारा ये जो एक्स आई एफ एन उसके साथ कन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो फिर आपको आउटपुट पे कुछ इस तरह की चीज़ मिलती है, जैसे ये जो रेड वैल्यूड सैंपल्स हैं, ये जो मार्क हुए हुए हैं, ये ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं है क्योंकि आपने तो जीरोस अपेंड की थी। लेकिन जब आप लो पास फिल्टरिंग से गुजार के आउटपुट पे देखते हैं, फिर यहाँ पे ये सैंपल्स आ चुके होते हैं। और जरूरी नहीं कि वो उनका एम्पलीट्यूड एक्जैक्टली यही हो जो यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि ये तो हमने लीनियर इंटरपोलेशन किया है, यानी आपने हर दो कंसेक्टिव सैंपल्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया है और जहां जहां फिर आपके पास सैंपल्स थे मिसिंग वो आपने मार्क कर दिए। यू डोंट ऑलवेज ज्वाइन द कंसेक्टिव सैंपल्स बाय अ स्ट्रेट लाइन। तो लो पास फिल्टरिंग जो है देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, यानी कि लो पास फिल्टरिंग में आपको क्या क्या चीज़ चाहिए? फ्रिक्वेंसी डोमेन में तो आपको सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी स्पेसिफाई करनी है। उसके लिए भी मैं क्लेम कर रहा हूँ कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी यहाँ पे पाई ओवर कैपिटल एल होनी चाहिए, इसमें हम बात करेंगे। तो ये तो फ्रिक्वेंसी डोमेन की बात है। जो भी आपका लो पास फिल्टर होगा, अगर वो आइडियल लो पास फिल्टर है, एक ब्रिक की तरह है या रेक्ट फंक्शन की तरह है, तो उसका जो टाइम डोमेन में जो मामला होगा इट विल लुक लाइक अ सिंक फंक्शन। और टाइम डोमेन में ये मामला होगा कि जो आपका इंटरपोलेटेड सिग्नल है जिसमें आपने जीरोस एम्बेड किए हैं, तो इट विल गेट कन्वॉल्व्ड विद दैट सिंक फंक्शन। और आउटपुट पे फिर ये जो आपके पास जो जीरो वैल्यूड सैंपल्स हैं, ऑल ऑफ अ सडन दे विल बिकम नॉन जीरो सैंपल्ड। अगर आप एनिमेशन सोचें तो आप इस तरह का सिग्नल पास करते हैं जिसमें रेड वैल्यूड सैंपल्स नहीं है, और आउटपुट पे यू सी द रेड वैल्यूड सैंपल्स, सो दे पॉप अप बिकॉज ऑफ द फिल्टरिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो ये एक यूज है फिल्टरिंग का, जो भी हमने देखा है कि जो जीरो वैल्यूड सैंपल्स हैं हम उनको रीजनेबल वैल्यूज जो है वो असाइन करते हैं, ऐसी वैल्यूज जो कि कंसेक्टिव सैंपल्स के दरमियान दे लुक रीजनेबल, यानी ऐसी ना हो कि जो बिल्कुल अजीब सी लगे, ठीक है। यानी कि दो सैंपल्स के दरमियान ऐसे सैंपल्स आने चाहिए जो उनसे मिलते जुलते जिनके एम्पलीट्यूड हो, ऐसे सैंपल्स नहीं आने चाहिए जिनके एम्पलीट्यूड या तो बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो ये काम नहीं होना चाहिए।
तो एक काम ये हो रहा है लो पास फिल्टरिंग की वजह से। एक दूसरा काम भी है जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इंटरपोलेशन का जो प्रोसेस है, जब आप जीरोस जो है वो एम्बेड कर रहे हैं बिटवीन कंसेक्टिव सैंपल्स, दैट प्रोसेस आल्सो लीड्स टू सम एडिशनल कॉपीज। जैसे डेसिमेशन के केस में आपके पास कुछ शिफ्टेड कॉपीज एक्स्ट्रा आ रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये मामला है कि फ्रीक्वेंसी स्केलिंग भी होगी, एक्स्ट्रा कॉपीज भी आएंगी, एंड यू नीड टू रिमूव दोज एक्स्ट्रा कॉपीज इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो आपके सिग्नल के फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स हैं दे रिमेन सेफ। ओके, तो यहाँ पे सैम्पलिंग रेट हम बढ़ा रहे हैं, तो जो शिफ्टेड कॉपीज हैं दे विल नॉट कॉज एलियसिंग, कि आपस में आप कह लें कि वो जो शिफ्टेड कॉपीज हैं दे विल नॉट ओवरलैप। लेकिन ये होगा कि एक से ज़्यादा शिफ्टेड कॉपीज आ जाएंगी, तो इट इज़ लाइक कि आपके पास सेम कंटेंट है और वो मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज पे पड़ा हुआ है, तो इट इज़ बीइंग रिपीटेड, कॉपीज उनके साथ साथ होंगी। तो आप उनमें से कोई भी एक कॉपी उठा लें तो दैट विल बी गुड इनफ फॉर योर पर्पस। तो अभी हम इस पे बात करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो यू गाइस कैन आस्क। सर जब भी इसमें इंटरपोलेशन करें तो आपका सिग्नल अब एक्सपैंड, तो फिर ओमेगा सी पाई बाय एल क्यों रखेंगे? शुडंट इट बी लार्जर देन पाई बाय एल नाउ सिंस सिग्नल अब एक्सपैंड हो रहा है? डेसिमेशन के केस में भी पाई बाय एम था, इसके केस में भी मतलब पाई बाय एल वो स्केलिंग फैक्टर से ही होएगा। चलें, यानी कि इसके लिए मेटल में आप वेट कर रहे हैं, हम अभी स्केचिंग पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे इसकी वो कह लें कि ज़्यादा बेहतर एप्रिसिएशन आएगी। और ठीक, जो दूसरी कंफ्यूजन है दैट इज़ वैलिड, उसको आंसर भी हम लोगों ने खुद ही करना है। हम कह रहे हैं कि जो इंटरपोलेटर है तो उसमें जो लेट मी राइट हियर, जो चीज़ मैंने अभी कही है कि ये जो ब्लॉक है, कि हम इस ब्लॉक को कहेंगे कि इट इज़ एन एक्सपेंडर ब्लॉक, और इसी तरह से ये जो ब्लॉक है डाउन एरो के साथ कैपिटल एम, तो हम इस ब्लॉक को कहेंगे कंप्रेसर ब्लॉक। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन श्योर, लेकिन हमें ये भी देखना है कि कौन सी डोमेन में देख रहे हैं। तो इंटरपोलेशन जो है वो हमारे सिग्नल को टाइम डोमेन में एक्सपैंड कर रही है, क्योंकि आप जीरोस ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो सिग्नल की ड्यूरेशन और उसकी ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस बढ़ जाती है। और इसी तरह से डेसिमेशन जो है वो टाइम डोमेन में सिग्नल को कंप्रेस कर रही है, क्योंकि जहां आपके पास 100 सैंपल्स थे और आपने डेसिमेशन की बाय फैक्टर ऑफ 10, तो आपके पास 10 सैंपल्स रह गए। तो ये जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन है, ये जो हमने यहाँ पे मार्क की हुई है, तो ये टाइम डोमेन में एक्सपेंशन और कंप्रेशन है। वरना अगर आप फ्रिक्वेंसी डोमेन में मामला देखें तो रिकॉल करें कि जब आपने डेसिमेशन की थी तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में एक्चुअली एक्सपेंशन हो रही थी, क्योंकि वो जो जी, कॉपीज हैं वो स्ट्रेच हो रही थी। और same phenomena you will observe with the interpolator, but in the opposite way, कि अब क्या होगा कि जो शिफ्टेड कॉपीज हैं, जो फ्रिक्वेंसी स्केल कॉपीज हैं, तो दे विल गेट compressed, ठीक है। तो बस यही चीज़ है कि जो इंटरपोलेटर है वो टाइम डोमेन में एक्सपेंशन कर रहा है, फ्रिक्वेंसी डोमेन में कंप्रेशन कर रहा है, और जो डेसीमेटर है तो वो टाइम डोमेन में कंप्रेशन कर रहा है और फ्रिक्वेंसी डोमेन में वो एक्सपेंशन कर रहा है। तो कुछ चीज़ें तो ये हैं कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन भी दोनों डोमेन्स में मुख्तलिफ है फॉर बोथ सिस्टम्स, ठीक है। एक सिस्टम एक डोमेन में एक्सपेंडर है तो दूसरी डोमेन में कंप्रेसर है, एंड वाइस वर्सा। और ये एक चीज़ है कि कंप्रेशन एक्सपेंशन आपने टाइम डोमेन फ्रिक्वेंसी डोमेन के लिहाज से केयरफुली ऑब्जर्व करनी है। और दूसरी चीज़ फिर जो है कि ये जो इंटरपोलेटर है, इस केस में आप आगे जो है वो एक लो पास फिल्टर लगाते हैं, और उसकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो पाई बाय कैपिटल एल आप चूज करते हैं, और डेसीमीटर के केस में आप प्री फिल्टरिंग करते हैं, और वहाँ पे जो लो पास फिल्टर है उसकी फ्रिक्वेंसी आप जो है वो पाई बाय कैपिटल एम चूज करते हैं। तो दैट आल्सो रिक्वायर्स इनकी डिस्कशन और अप्रिसिएशन। तो पाई बाय एम पे तो अभी हमने लेक्चर के स्टार्ट में काफ़ी डिटेल से बात कर ली है कि जो डेसीमीटर सिस्टम है उसमें प्री फिल्टरिंग के लिए आपको पाई बाय एम ही क्यों एक सूटेबल नंबर है, कोई और नंबर क्यों नहीं। तो इसमें हमने काफ़ी बात की है। हमने कहा है कि जो हमारा डिस्क्रीट टाइम में DTFT के केस में अगर हम देखें तो XE2J ओमेगा है, उसका कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है वो मीनिंगफुल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पाई से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, यानी कि उसके सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो जीरो से पाई के दरमियान रहने चाहिए। तो ये डिस्कशन हमने की थी एज्यूमिंग नाइक्वेस्ट रेट। तो जिसकी वजह से फिर हमने कहा कि जब हम डेसिमेशन करेंगे तो हर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट जो है इट विल गेट स्केल्ड बाय कैपिटल एम। तो अगर ओरिजिनल सिग्नल की बैंडविड्थ पाई थी
तो नए सिग्नल की बैंडविड्थ पाई बाय एम हो जाएगी फ्रिक्वेंसी स्केलिंग की वजह से, जिसकी वजह से आप पहले से ही फिल्टरिंग करते हैं बाय पाई बाय एम, सो दैट के डेसिमेशन के बाद जो आपके पास नेट बैंडविड्थ रहे तो वो पाई रहे। तो ये पाई बाय एम की मोटिवेशन हमने दी थी। तो इस तरह से पाई बाय एल की जो मोटिवेशन है वो अभी आएगी जब हम ये स्केचिंग करेंगे। तो यू विल सी के इंटरपोलेशन की वजह से भी सम एक्स्ट्रा कॉपीज आर इंट्रोड्यूस्ड, और वो जो एक्स्ट्रा कॉपीज हैं वी नीड टू एलिमिनेट देम। तो अब की बार जो एक्स्ट्रा कॉपीज आ रही हैं इंटरपोलेशन की वजह से, इसको आपने जहन में रखना है कि दीज कॉपीज डू नॉट कॉज एलियसिंग, क्योंकि ये एक रेपिटेशन है। इसमें आप कह लें कि कॉपीज आपस के दोस्त कॉपीज आर रिडंडेंट, तो हम उनको रिमूव करना चाह रहे हैं। लेकिन वही है कि अब मैं ये बात अगर 3-4 दफा भी रिपीट करूं तो इट विल नॉट बी इफेक्टिव until we draw something. तो let me draw. तो ये हमारे पास एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट था एक्स ऑफ टी, उसका स्पेक्ट्रम हमने बनाया हुआ है। उसमें ये पॉइंट जो है वो कैपिटल ओमेगा एन है, ये माइनस कैपिटल ओमेगा एन है, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी सैम्पलिंग हो रही है वो नाइक्वेस्ट रेट पे हो रही है। तो नाइक्वेस्ट रेट पे सैम्पलिंग को आपने किस तरह से याद रखना है? व्हाट इज नाइक्वेस्ट रेट? नाइक्वेस्ट रेट के लिए ये जो रिलेशनशिप है ये होल्ड करेगा कि जो आपकी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है दैट इज ट्वाइस द नेचुरल फ्रिक्वेंसी, और वाइस वर्सा के आपकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है या मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है दैट इज ओमेगा एस बाय 2। तो ये रिलेशनशिप कब होल्ड करते हैं? जब नाइक्वेस्ट रेट पे सैम्पलिंग हो। तो नाइक्वेस्ट रेट पे सैम्पलिंग हम लोगों ने एज्यूम की है, और फिर हम अगले स्टेप में हम एक्स एस जी ओमेगा बना लेते हैं। टेक्स्ट बुक में ड्रॉ नहीं हुआ वो, लेकिन हम कर सकते हैं फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। जो सैम्पल सिग्नल है ओरिजिनल कॉपी आपके पास आ जाएगी, और फिर क्या है कि शिफ्टेड कॉपीज आपने बनानी है। शिफ्टेड कॉपीज कहाँ पे सेंटर्ड होनी चाहिए? पहली शिफ्टेड कॉपी ओमेगा एस पे होगी, लेफ्ट साइड पे जो पहली शिफ्टेड कॉपी है तो दैट विल बी सेंटर्ड एट माइनस ओमेगा एन एस एंड सो ऑन। और फिर आपने शिफ्टेड कॉपीज ड्रॉ करनी है। अब क्योंकि हमने नाइक्वेस्ट रेट एज्यूम किया है, इस केस में ये जो शिफ्टेड कॉपीज हैं दे एग्जैक्टली टच ईच अदर, तो वो ओवरलैप नहीं करनी है। अगर आप जो है वो ओमेगा एस ऐसा चूज करें विच इज लेस देन 2 ओमेगा एन, तो फिर आपको ओवरलैप नजर आएगा। और अगर आप ऐसा रेट चूज करें ओमेगा एस विच इज ग्रेटर देन 2 ओमेगा एन, तो फिर आपको जो कॉपीज हैं उनके दरमियान स्पेसिंग नजर आएगी। तो जब आपने चूज किया है कि ओमेगा एस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2 ओमेगा एन, तो उस केस में जो कॉपीज हैं दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर, तो ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। ये आपके पास सैम्पल सिग्नल है, और इसमें आप पॉइंट्स जो हैं वो बना सकते हैं। ये ओमेगा एन ये पॉइंट है, और ये किसके इक्वल है? ओमेगा एस बाय 2। इस तरह बाकी पॉइंट्स भी आप मार्क कर सकते हैं। ये सैम्पल सिग्नल आपके पास आ गया। तो सैम्पल सिग्नल से आप जो है वो सैम्पल सिग्नल का स्पेक्ट्रम, तो डिस्क्रीट जो सिग्नल है आपका एक्स ऑफ एन, उसका स्पेक्ट्रम आप कैसे बना सकते हैं? एक्स एस जे ओमेगा से एक्स ई टू जे ओमेगा कैसे बनाते थे हम? रिकॉल कि आप एक्स एक्सेस को स्केल करेंगे, स्मॉल ओमेगा इक्वल्स कैपिटल ओमेगा टाइम्स टी। ठीक है, तो जो सेकंड जो प्लॉट अभी हमने बनाया था, यानी उसकी जो शेप है इट विल बी प्रिजर्व्ड, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, सिर्फ उसका एक्स एक्सिस चेंज हो गया है और उसकी स्केलिंग हो गई है। तो हर एक्स एक्सिस पे जो मार्क आपका पॉइंट है उसको आपने किसी से मल्टीप्लाई करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद कैपिटल टी। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया है? ओमेगा एस टाइम्स टी। ये पॉइंट कौन सा हो गया है? ओमेगा एन टाइम्स कैपिटल टी। ऑफ कोर्स जो अनमार्क्ड पॉइंट्स हैं वो भी स्केल होंगे, ठीक है, लेकिन हम हर पॉइंट को लिख नहीं सकते हैं। और इसी तरह से माइनस एस ओमेगा टाइम्स टी और सो ऑन, ठीक है। और फिर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें बाय नाउ हमें याद हो जाना चाहिए कि ओमेगा एस इज स्पेशल नंबर, कैपिटल ओमेगा एस दैट इज 2 पाई ओवर टी, ठीक है। इसकी वैल्यू यही है। जब आप इसको टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो पॉइंट है हमेशा इट ऑलवेज बिकम्स 2 पाई। और अगर नाइक्वेस्ट रेट पे आपकी सैम्पलिंग हो रही हो तो आपका जो ओरिजिनल स्पेक्ट्रम है तो दैट एंड्स एट पाई, ठीक है, और दूसरी साइड पे एंड्स एट माइनस। दे आर ऑल काइंड ऑफ वेरी स्पेशल नंबर्स जो हमें मिलते हैं। और ऑफ कोर्स ये जो चीज़ है ये कंटिन्यू भी है, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम है इट इज़ एवरलास्टिंग, और DTFT तो वैसे भी हमेशा पीरियोडिक होती है। ये एक्स ई टू जे ओमेगा आ गया। उसके बाद फिर अब हम जो इंटरपोलेशन की वजह से जो मामला हो रहा है हम उसको स्केच करना चाहेंगे। तो लेट मी प्लॉट इट अगेन द सेम थिंग।
तो ये पॉइंट आपके पास 0 है, ये पॉइंट 2 पाई है, ये -2 पाई है, ठीक है। तो 2 पाई इज द सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी, ठीक है, स्मॉल ओमेगा के कॉन्टेक्स्ट में। स्मॉल ओमेगा एस यानी कि सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है जिस पे आपकी जो कॉपीज हैं वो सेंटर्ड होनी चाहिए। ओके, ये है, और यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर 1/t का भी आएगा। अब ये आपके पास जो स्पेक्ट्रम है दैट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ योर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। और कौन सी ब्लॉक डायग्राम हमारे जहन में है जिसके मुताबिक हम स्केचिंग कर रहे हैं, तो अभी के लिए कि एक्स ऑफ एन है उसको हम पास कर रहे हैं, एक्स ऑफ एन को हम पास कर रहे हैं थ्रू an interpolator block which appends capital L samples, L-1 samples between two consecutive samples, ठीक है। तो इसकी जो आउटपुट है इसको हमने एक्स आई ऑफ एन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम है जिसके लिए हम स्केचिंग जो है वो करना चाह रहे हैं। तो अब हमारे पास जो रिलेशनशिप है जो हम लोगों ने यूटिलाइज करना है वो ये कि फ्रीक्वेंसी डोमेन रिलेशनशिप, एक्स आई टू जे ओमेगा के जो इंटरपोलेटेड सिग्नल का जो स्पेक्ट्रम है, हाउ इज इट रिलेटेड टू द स्पेक्ट्रम ऑफ माय ओरिजिनल सिग्नल। तो वो जो रिलेशनशिप है दैट इज क्वाइट कॉम्पैक्ट, और दिस इज द रिलेशनशिप कि जो इंटरपोलेटेड सिग्नल है उसका स्पेक्ट्रम क्या है कि जो ओरिजिनल आपके पास स्पेक्ट्रम था वही है, बट इट गेट्स कैपिटल एल। तो ये वही चीज़ है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी लिखी थी। अगर आपके पास एक्स ऑफ टी है और आप एक्स ऑफ ए टी लिखते हैं, और इस पर्टिकुलर केस में क्या है कि ए इज ग्रेटर देन 1, यानी कि जिस चीज़ को मैं ए कह रहा हूँ तो वो हमारी नोटेशन में कैपिटल एल है, तो दैट विल इम्प्लाई, व्हाट इज दैट गोइंग टू इम्प्लाई, ए कंप्रेशन। तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में कंप्रेशन होगी। तो अब हम कहते हैं कि लेट कैपिटल एल इक्वल टू, तो अगर हम एग्जाम्पलीफाई कर लें कि कैपिटल एल 2 है, अब हम स्केच बनाने जा रहे हैं, ठीक है, फॉर द इंटरपोलेटेड सिग्नल। इंटरपोलेटेड सिग्नल का भी स्पेक्ट्रम एक्स आई ई टू जे ओमेगा। तो ये पॉइंट आपके पास 0 पे था, और अब यानी कि शेप तो वही रहनी है, ठीक है, लेकिन एक्स एक्सिस पे जो स्केलिंग है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और मेरे को हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन अभी हम यहाँ बनाते हैं फिर दोबारा उसको करेंगे। तो अब आपकी स्केलिंग कैसे हो रही है, कैपिटल एल 2 है, तो आपको इफेक्टिवली जो चीज़ प्लॉट करनी है वो कौन सी चीज़ है, एक्स ई टू जे ओमेगा 2, ठीक है। तो ये अब आपके पास एक ऐसा फैक्टर है विच इज ग्रेटर देन 1, जिसकी वजह से आपके पास कंप्रेशन होगी। कंप्रेशन कितने फैक्टर के साथ होगी, बाय फैक्टर ऑफ 2। तो दैट मीन्स के एक्स एक्सिस पे हर जो आपके पास वैल्यू है, यू हैव टू डिवाइड दैट वैल्यू बाय 2, ठीक है। तो आपने हर वैल्यू को 2 से डिवाइड करना है। तो ये जो आपके पास 2 पाई वाला पॉइंट था ये 2 से डिवाइड होके कहाँ पे आ जाएगा, ये पाई पे आ जाएगा। और ये जो पॉइंट था आपके पास विच वाज पाई, तो ये पॉइंट अब कौन सा हो गया, दैट इज पाई/2। और इसी तरह से ये पॉइंट आपके पास कौन सा हो गया, -पाई/2, क्योंकि ये पॉइंट जो था आपके पास -पाई था। और -2 पाई वाला पॉइंट कहाँ पे आ गया, -पाई पे आ गया। और ये जो पॉइंट था आपके पास दैट वाज 3 पाई। तो अब स्केलिंग के बाद ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 3 पाई/2, ओके। और इसी तरह से ये जो पॉइंट था आपके पास दैट वाज -3 पाई। तो स्केलिंग के बाद ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, -3 पाई/2, एंड सो ऑन। आप यानी कि देख सकते हैं कि अगर आपने, जैसे हम टिपिकली DTFT के बारे में क्या कर रहे होते हैं, हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम DTFT को स्केच करें बिटवीन 0 to 2 पाई या -पाई to पाई, ठीक है। तो इसमें भी यही है कि आप मजीद कॉपीज करके देखने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि यू कैन स्केच मोर कॉपीज, क्योंकि कॉपीज तो मुसलसल आ रही हैं क्योंकि इट्स एन एवर लास्टिंग सिग्नल, ठीक है। लेकिन आपको जो चीज़ इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है कि जो आपके पास DTFT के केस में जो आपके मीनिंगफुल फ्रिक्वेंसी है तो वो या 0 से 2 पाई है या -पाई से पाई है। तो अगर आप -पाई से पाई की रेंज अगर आप हाईलाइट कर लें, यानी ये रेंज, तो आपको पता है कि इस रेंज में जो कुछ हो रहा है तो वही चीज़ रिपीट होगी, क्योंकि DTFT इज पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई। तो ये जो -पाई से पाई की जो रेंज है इसमें जो कुछ भी आपने देख लिया है, यानी कि व्हाट डिड यू सी, ये चीज़ है।
तो यही चीज आगे भी जो है वो रिपीट होगी। लेकिन इसमें भी आपको पता है कि वट एवर योर फ्रिक्वेंसी कॉन्टेंट्स आर, ठीक है, तो वो फ्रिक्वेंसी कॉन्टेंट्स कहाँ पे हैं, ये जो जिस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कॉम्पोनेंट्स हैं। और उसके बाद आई एम नॉट श्योर कि अब किस तरह से मैं हाँ ये सही है, डिफरेंट कलर से कर लेते हैं। तो ये अब ये जिस चीज को मैं ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वो चीज है जो रिडंडेंट है, यानी कि इसको हम एलियासिंग नहीं कहेंगे क्योंकि फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स आपस में मिक्सअप नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये जो चीज है, ये जो ग्रीन सी रेक्टेंगल में ग्रीन सी ट्राइंगल में बता रहा हूँ, ये चीज जो है दैट इज एक्स्ट्रा। और इसी तरह से लेफ्ट साइड पे भी जो ग्रीन चीज है दैट इज ऑल्सो एक्स्ट्रा। यानी ये वो चीज है कि ये एक तरह से मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे जो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो ऑलरेडी रेड में मौजूद हैं। तो आप यूं कह लें कि इंटरपोलेशन की वजह से एलियासिंग नहीं हो रही है, जो एडजेसेंट कॉपीज हैं वो आपस में दे डू नॉट काइंड ऑफ डिफ्यूज इनटू ईच अदर, वो आपस में मिक्सअप नहीं होती हैं, लेकिन दाएं बाएं अपेंड जरूर होती हैं। तो ये जो ग्रीन में जो चीजें हैं ये एक तरह से आपको नहीं चाहिए, यानी ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। तो जिसकी वजह से फिर आप क्या करेंगे, आप एक फिल्टर बनाने की कोशिश करेंगे जिसका कट ऑफ इस तरह का हो फिल्टर का कि ये जो ग्रीन कॉपीज हैं वो स्प्रेस हो जाए। तो ये जो अब आपका फिल्टर बन रहा है, ये इस करंट सिचुएशन में वो किस तरह का फिल्टर बन रहा है, तो उसकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपको नजर आ रही है, व्हाट इज द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, π/2, ठीक है। तो जो हमें फिल्टर हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, जिससे हम ग्रीन कॉपीज यानी एक्स्ट्रा जो कॉपीज हैं रिडंडेंट कॉपीज वो निकाल सकते हैं, तो उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी नजर आ रही है π/2। तो ये कब था, जब आपने कैपिटल एल को 2 रखा हुआ था। तो इन जनरल जो आपके पास इंटरपोलेशन होगी दैट विल बी बाय फैक्टर कैपिटल एल, तो जिसकी वजह से फिर आप जो लो पास फिल्टर यूज करेंगे उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी π/L। तो आई होप के बाय नाउ इट्स क्लियर टू यू गाइस के लो पास फिल्टरिंग इंटरपोलेटर के केस में क्यों चाहिए, इनके इट डज नॉट सर्व द सेम पर्पस जैसे डेसिमेटर ब्लॉक में था। डेसिमेशन के केस में जो लो पास फिल्टर है इट इज कॉल्ड एंटी एलियसिंग फिल्टर, ठीक है। आपको पता होता है कि सैम्पलिंग रेट कम करने की वजह से एलियसिंग होगी। तो अगर आपने सैम्पलिंग रेट कम करना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप अपने सिग्नल की बैंडविड्थ ही रिड्यूस कर दें। और वो बैंडविड्थ कैसे रिड्यूस करेंगे, आप एक ऐसा फिल्टर लगाएंगे जो जिसकी कट ऑफ होगी फ्रिक्वेंसी π/m। तो आप ऑलरेडी अपनी सिग्नल की बैंडविड्थ को डिस्क्रीट टाइम के केस में हम बात कर रहे हैं, तो उसको एक बाय फैक्टर ऑफ m आप रिड्यूस कर रहे होंगे, तो दैट फिल्टर इज कॉल्ड एंटी एलियसिंग फिल्टर। और यहाँ पे जो लो पास फिल्टर है तो दैट इज नॉट एंटी एलियसिंग फिल्टर, इट इज जस्ट अ लो पास फिल्टर व्हिच रिमूव्स द रिडंडेंट कॉपीज। कोई क्वेश्चन? तो लेट अस सी द सेम थिंग हैपनिंग इन द टेक्स्ट बुक, ठीक है। ये हमारे पास टॉप में वही प्लॉट है जो हमने बनाया है, और जो सेकंड प्लॉट है तो दैट इज द DTFT ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल x(e⁻ ओमेगा। और फिर जो थर्ड प्लॉट है तो दैट इज द DTFT द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ माय इंटरपोलेटेड सिग्नल, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने इंटरपोलेशन किया है बाय फैक्टर ऑफ 2। तो यू कैन सी इजीली कि जो पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस पे जो लेबल्स हैं सेकंड प्लॉट में, उनको किस तरह से स्केल करना है कि आपके पास थर्ड प्लॉट में जो एक्स एक्सिस के लेबल्स हैं वो आए। तो सेकंड प्लॉट में जो एक्स एक्सिस के लेबल्स हैं यू हैव टू डिवाइड ईच ऑफ देम बाय 2 इन ऑर्डर टू श्रिंक द प्लॉट, ठीक है। तो 2π वाला पॉइंट जो है वो पाई पे चला जाएगा, पाई वाला पॉइंट π/2 पे चला जाएगा एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में जो उन्होंने स्केचिंग की हुई है इस पर्टिकुलर केस में, तो वो उन्होंने ये किया है कि जो सेकंड प्लॉट है उसको भी 4π ड्यूरेशन के लिए प्लॉट किया हुआ है, यानी -2π से 2π तक किया हुआ है। और जो थर्ड प्लॉट है वो भी उन्होंने 4π ड्यूरेशन के लिए स्केच किया हुआ है, तो यानी कि -2π से 2π तक। तो जब आपने 4π ड्यूरेशन पे यानी आप चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और फिर ये कि फ्रिक्वेंसी स्केलिंग की वजह से श्रिंकिंग होगी, तो ऑल ऑफ अ सडन वो श्रिंकिंग का फिनोमेना आपको नजर आ रहा होता है कि पहले अगर जो है वो -π से π के दरमियान जो है अगर एक कॉपी थी, तो अब -π से π के दरमियान आपके पास जो है वो 2 कॉपीज होंगी एंड सो ऑन, यानी कि आपके पास डबल कॉपीज हो गई हैं। जैसे 4π ड्यूरेशन में अगर आपके पास 3 कॉपीज आ रही थी, तो अब 4π ड्यूरेशन में अब आपके पास 6 कॉपीज आ रही हैं। तो ये है। और उसके बाद फिर वही चीज़ के आप -π से π का जो ड्यूरेशन है उसको हाईलाइट कर लेंगे अपने जहन में, फिर आपको पता चलेगा कि इसके अलावा जो कुछ भी है वो तो मुझे नहीं चाहिए।
तो फिर जब आप कहेंगे कि एवरीथिंग एल्स इज रिडंडेंट, तो फिर आप पाई बाय एल कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का फिल्टर जो है वो चूज करेंगे। और यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स या ट्रांसफर फंक्शन जो भी आप इसको कह लें, आपको फिल्टर का नजर आ रहा है। तो इसमें क्या मामला है, यानी कि इफ यू गाइस आर सपोज टू स्केच इट, यानी अगर हम आपको मिड टर्म एग्जाम में या होमवर्क वगैरह में कहते हैं कि आप हमें फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स पे स्केच करें, तो प्लीज मेक श्योर, यानी कि मैं इस पॉइंट को एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि हमेशा ज़हन में रखना है कि ऑल द DTFTs आर पीरियोडिक विद पीरियड 2π। तो जो भी फिनोमेना, जैसे इस फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स को आप देखें तो -π से π के दरमियान आपको एक रेक्ट फंक्शन नजर आ रहा है विच इज सेंटर्ड एट 0। तो फिर सेम जो रेक्ट फंक्शन है उसकी एक कॉपी जो है इट विल बी सेंटर्ड एट 2π। इसी तरह से उसकी कॉपी जो है इट विल बी सेंटर्ड एट -2π। और फिर अगर आप 4π पे देखेंगे वहां पे भी आपको एक कॉपी नजर आएगी, 6π पे भी नजर आएगी, 8π पे भी, एंड सो ऑन। तो मेक श्योर करें कि यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। और इवन दो कि हम -π से π कंसीडर कर रहे होते हैं, लेकिन इट्स स्टिल इम्पोर्टेंट कि आप 2π और -2π या 4π और -4π इस पे अगर आपको स्केचिंग करनी पड़े तो यू नो कि व्हाट डज इट मीन। यानी एक चीज है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो उसकी जो पीरियोडिसिटी है वो अपने हमें शो करनी है। तो लास्ट प्लॉट जो है आपके पास वो है कि जब आपने अपने इंटरपोलेटेड सिग्नल को, यानी जो थर्ड सिग्नल था उसको आपने फिल्टरिंग की है, तो जो रिडंडेंट कॉपीज हैं वो आपने रिमूव कर दी हैं। तो यू कैन सी के पहले क्या था कि आपके पास हर एक कॉपी के बाद एक कॉपी एक्स्ट्रा थी बिकॉज ऑफ इंटरपोलेशन। तो वो अपने एक्स्ट्रा कॉपी जब आपने रिमूव किए तो आपके पास जो है वो नाउ देयर इज अ गैप बिटवीन द शिफ्टेड कॉपीज, जो आपको सबसे लास्ट जो प्लॉट है उसमें नजर आ रहा है। तो वो जो एक एक्स्ट्रा कॉपी आई थी दैट वाज बिकॉज ऑफ इंटरपोलेशन प्रोसेस। वो जो आपने जीरो पैडिंग की थी, जो जीरोस एम्बेड किए थे बिटवीन कंसेक्टिव सैंपल्स, तो जीरो पैडिंग की वजह से फ्रिक्वेंसी डोमेन में क्या मामला हुआ कि एक एक्स्ट्रा जो है वो कॉपी आपको नजर आना शुरू हो गई थी। ओके, एनी क्वेश्चन? सर जी बताएं। सर जो आप पाई बाय टी फिल्टर की बात कर रहे हैं वो आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था आज। पाई बाय टी फिल्टर की क्वेश्चन बताएं दोबारा। सर जब कह रहे हैं कि पाई बाय टी फिल्टर यूज होगा कॉपीज को एलिमिनेट करने के लिए, तो उसका मुझे नहीं, थोड़ा सा बड़ा पाई बाय टी नहीं है, पाई बाय कैपिटल एल है। ओके यानी लेट मी पुल अप द ब्लॉक डायग्राम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। यानी ये चीज है जो फिगर 4 to 4 है, इसको हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा एक फुल फ्लैज वर्किंग जो सिस्टम है फॉर इंटरपोलेशन इट लुक्स लाइक दिस। जो फिगर 424 में जो चीज स्केच हुई है, तो ये वो ब्लॉक डायग्राम है जो इम्प्लीमेंट करनी है हम लोगों ने अपने FPGA में या वेरीलॉग में, जो भी आप कभी कोड लिखेंगे अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए, यानी जब भी आप कोई जॉब वगैरह करेंगे और इफ यू गाइस आर सपोज टू मेक एन इंटरपोलेटर, तो आपको ये ब्लॉक डायग्राम जो है वो यूज करनी है। उसमें हमने कहा था कि इंटरपोलेशन बज़ाहिर तो यही चीज़ है कि हर दो सैंपल्स के दरमियान आप जो है वो कैपिटल L-1 जीरोस जो हैं आप एम्बेड कर दें अगर आपने इंटरपोलेशन करनी है बाय फैक्टर ऑफ कैपिटल L। यानी कि अगर आपने अपने सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट जो x ऑफ n है उसके सैम्पलिंग रेट को आपने 3 टाइम्स बढ़ाना है, तो आप हर दो कंसेक्टिव सैंपल्स के दरमियान जो है वो 2 जीरोस अपेंड करते जाएंगे। और आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? x ऑफ 0 से, यानी कि दैट सैंपल विच लाइज एट इंडेक्स 0। तो 0 इंडेक्स वाले सैंपल से स्टार्ट करना है, हर दो सैंपल्स के दरमियान कैपिटल L-1 जीरोस एम्बेड करनी है। फिर हमने कहा कि अगर हम हर दो कंसेक्टिव सैंपल्स के दरमियान जीरोस एम्बेड करेंगे तो सैंपल्स तो हमारे बढ़ गए कि अगर ओरिजिनली आपके पास एक वेक्टर था जिसका साइज 1000 था, आपने सैम्पलिंग रेट 3 टाइम बढ़ाया, तो अब आपके पास आपके वेक्टर में जो मैटलैब में जैसे वेक्टर होते हैं आपके पास, तो आपके पास वेक्टर में 3000 सैंपल्स पड़े हुए हैं। तो आपका सैम्पलिंग रेट 3 टाइम्स बढ़ तो गया, लेकिन दरमियान में जो आपने जीरो पैडिंग की है तो इट इज नॉट समथिंग वेरी गुड। यानी कि आप चाह रहे हैं कि वो जो सैंपल्स हैं वो एक्चुअली नॉन जीरो सैंपल्स हों, जिसके लिए फिर हमने उसको कॉन्सेप्चुअली हमने उसको वाजे किया कि आप क्या करेंगे कि हर दो कंसेक्टिव सैंपल्स को ज्वाइन करेंगे बाय मींस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, और उस लाइन पे आपके पास जो जीरो वैल्यूड सैंपल्स हैं वो आ जाएंगे। तो फिर ये था कि जो जीरो पैडिंग के बाद जो आपके पास ऐसे सैंपल जो जीरो वैल्यूड थे वो नॉन जीरो सैंपल्स से कैसे रिप्लेस होंगे, उसके लिए हमने कहा कि लेट्स पास आवर इंटरपोलेटेड सिग्नल थ्रू अ फिल्टर। तो वो फिल्टर जो है वो दो काम करेगा, एक तो ये कि जो नॉन जीरो जो जीरो वैल्यूड सैंपल्स हैं
वो उनको नॉन जीरो सैंपल्स में कन्वर्ट करेगा अकॉर्डिंग टू एन इंटरपोलेशन फार्मूला। इंटरपोलेशन का ये मतलब होता है कि आप मिसिंग इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट कर रहे हो। जैसे आपके पास जो जितने भी पजल्स होते हैं, सुडोको है या और चीज़ें हैं जिसमें आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है और आपने जो मिसिंग नंबर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की चीज़, कि वो मिसिंग नंबर्स आपने प्लग इन करने हैं इन अ रीजनेबल वे, कि कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो। तो फिल्टर का काम एक ये था कि जो जीरो वैल्यूड सैंपल्स हैं, जीरो पैडिंग की वजह से उनको नॉन जीरो बनाए इन अ रीजनेबल वे अकॉर्डिंग टू सम इंटरपोलेशन फार्मूला, जो कई दफ़ा लीनियर इंटरपोलेशन होती है, कई दफ़ा कुछ और होती है। और दूसरा फिर काम ये था कि जब हमने देखा कि जो जीरो पैडिंग हम कर रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में उसका इफेक्ट क्या नजर आता है कि एक तो ये कि जो आपका स्पेक्ट्रम है इट गेट्स श्रिंक्ड, ये कंप्रेस हो जाता है। और वो कंप्रेशन किस फैक्टर से होती है? इट इज बाय फैक्टर ऑफ कैपिटल एल। तो अगर आपने इंटरपोलेशन किया बाय फैक्टर ऑफ 2 तो आपका जो टोटल स्पेक्ट्रम है एक्स ई टू जे ओमेगा इट विल गेट कॉम्प्रेस्ड बाय फैक्टर ऑफ 2। तो वो जो कंप्रेशन हो रही है बाय फैक्टर ऑफ 2, तो उसकी वजह से ये होता है कि फिर हर दो कॉपीज के दरमियान एक एक्स्ट्रा कॉपी जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो वो फिर जो एक्स्ट्रा कॉपी है उसको रिड्यूस करने के लिए, फिर उसको एलिमिनेट करने के लिए ये जो फिल्टर है वो इस्तेमाल होता है। तो ये फिल्टर जो है इसके दो पर्पसेस हैं। टाइम डोमेन में ये जीरो वैल्यूड सैंपल्स को नॉन जीरो वैल्यूड सैंपल्स बनाता है अकॉर्डिंग टू एन इंटरपोलेशन फार्मूला, और फ्रिक्वेंसी डोमेन के कॉन्टेक्स्ट में इट एलिमिनेट्स द एडिशनल कॉपी विच अराइजेस। तो ये चीज़ है। I've tried to explain all of the math, जो भी चीज़ whatever is going on, तो मैंने उसको लफ्ज़ों में explain करने की कोशिश की है so that कि हम आप कह लें कि we start to love these topics, और यानी कि ये जो topics हैं वो हमारे लिए अजनबी ना रहें, यानी कि we start to own them. का जो मामला है वो थोड़ा सा यहाँ पे इस फिगर 4 to 6 में स्केच किया हुआ है उन्होंने, इसको भी आप देख सकते हैं। ये जो आपके पास मिडिल में जो प्लॉट है जहाँ पे मैं इस वक्त माउस को होवर कर रहा हूँ, तो ये वो चीज़ है कि आपके पास एक एक्साफैन था और उसमें आपने इंटरपोलेशन की बाय फैक्टर ऑफ 5। तो बाय फैक्टर ऑफ 5 की इंटरपोलेशन का मतलब है कि हर दो कंसेक्टिव सैंपल्स के दरमियान आपने 4 जीरो वैल्यूड सैंपल्स एम्बेड किए, लेकिन ऑफ कोर्स दे लुक अगली, क्योंकि आपने हर दो सैंपल्स के दरमियान जीरोस डाल दिए हैं। तो इससे क्या फायदा हुआ है? तो यू नीड टू काइंड ऑफ मेक दीज जीरो वैल्यूड सैंपल्स नॉन जीरो। तो फिर उसमें ये है कि एक वो चीज़ है जो हमारी कॉमन सेंस हमें कहती है कि हर दो कंसेक्टिव सैंपल को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें, जो नीचे वाले प्लॉट में जिसमें मैं होवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने हर दो कंसेक्टिव सैंपल्स को स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन किया हुआ है, और फिर दरमियान में जो मिसिंग सैंपल्स हैं उनको मार्क किया हुआ है कि ये उनके एम्पलीट्यूड सेट कर लें, एंड दिस इज हाउ यू मेक द जीरो वैल्यूड सैंपल्स द नॉन जीरो वैल्यूड सैंपल्स। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जो लीनियर इंटरपोलेशन करेगा, वो सिस्टम जो है उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स किस तरह का होगा, वो ये उन्होंने टॉप फिगर में प्लॉट किया हुआ है। तो यानी आई एम नॉट आस्किंग यू गाइस टू मेमोराइज इट, लेकिन इट लुक्स लाइक अ ट्रायंगुलर फंक्शन। तो ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल फंक्शन जो है, इफ यू रिफ्रेश और ब्रश अप योर मेमोरीज ऑफ सिग्नल सिस्टम, तो यू विल रिकॉल कि ट्रायंगल फंक्शन कब आता है? जब आप दो रेक्ट फंक्शंस को कन्वॉल्व करते हैं। तो रेक्ट फंक्शंस को कन्वॉल्व करते हैं तो आपके पास ट्रायंगल आता है। तो ये जो ट्रायंगुलर ऐसा फंक्शन जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स एक ट्रायंगल फंक्शन है, तो दैट विल गिव यू लीनियर इंटरपोलेशन, यानी कि ये आपके एडजेसेंट सैंपल्स के दरमियान जो जीरो वैल्यू सैंपल्स हैं इनको नॉन जीरो वैल्यू सैंपल बनाएगा अकॉर्डिंग टू लीनियर इंटरपोलेशन रूल। ठीक है, फिर यहाँ पे फिगर 4 to 7 में थोड़ा सा उन्होंने कंपैरिजन दिया हुआ है। अब ये जो इस तरह की दरमियान में हम कभी डिस्कशन कर रहे होते हैं, एक आप कह लेंगे एक्स्ट्रा कैंडी फॉर दो स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं। नॉट एवरीथिंग इज गोइंग टू शो अप ऑन द एग्जाम्स, तो कुछ चीज़ें हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम उस पर बात कर रहे होते हैं। तो ये जो हमारे पास फिगर 4 to 7 है, इसमें हम हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्सेज हैं, उनका कंपैरिजन है कि जो हमारा आइडियल लो पास फिल्टर है इंटरपोलेटर के केस में, जो ब्रिक फंक्शन की तरह है, रेक्ट की तरह है, जिसकी कट ऑफ कितनी है π/5, क्योंकि इंटरपोलेशन हो रही थी बाय फैक्टर ऑफ 5 इन दिस एग्जांपल। ठीक है, तो आइडियल अगर आप लो पास फिल्टर यूज करते तो वो ब्रिक की तरह होता, लेकिन जब आपने लीनियर इंटरपोलेटर यूज करने की कोशिश की है तो लीनियर इंटरपोलेटर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है तो दैट लुक्स लाइक सिंक, लेकिन एक्चुअली ये सिंक भी नहीं है क्योंकि इसमें नेगेटिव एम्पलीट्यूड्स नहीं है, तो एक्चुअली इट इज सिंक स्क्वायर।
तो रेक्ट जो है उसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म सिंक है, फिर जब आप रेक्ट को रेक्ट से कन्वॉल्व करते हैं तो यू गेट अ ट्राइंगल इन टाइम डोमेन, और वो जो कन्वोल्यूशन है इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो रेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग सिंक फंक्शन था, तो जब आप दो सिंक फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट सिंक स्क्वायर। तो ये सिंक स्क्वायर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे स्केच किया हुआ है। तो ये भी जो दो डायग्राम्स हैं वो हमें क्या बता रही हैं कि जब आप लीनियर इंटरपोलेशन करते हैं तो जो आपके पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है तो वो सिंक स्क्वायर है। तो व्हाट डज दैट मीन कि π/5 से लेके पाई फ्रीक्वेंसी तक जो कंपोनेंट्स हैं वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स फुली डिस्कार्ड नहीं होते, बल्कि वो थोड़ा थोड़ा जो है वो आपको शो अप होते हैं इन योर आउटपुट, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके पास जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो ब्रिक की तरह नाइस और क्लीन नहीं है, क्योंकि जो ब्रिक की तरह रेक्ट फंक्शन की तरह जो आपके पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो तो वैसे भी आइडियल केस है जिसको आप लैब सेटिंग में कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो इन एक्चुअल यानी कि इन रियलिटी जो चीज़ आपको मिलेगी वो इसी तरह की कोई चीज़ होगी जो लीनियर इंटरपोलेशन के आसपास होगी, जिसमें वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक हैं वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स भी थोड़े बहुत जो है वो आपको शो अप हो रहे होंगे इन योर आउटपुट, यानी कि दे विल नॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड, क्योंकि ये जो आपको साइड लोब्स कहते हैं। ओके, तो हम अगली चीज पे आ रहे हैं। सर जिस तरह भी आपने बात की कि ये सारे जो भी हम मतलब स्केचेस वगैरह बनाएंगे DTFT हमेशा 2π के साथ पीरियोडिक होएगा, तो लाइक द फ्रीक्वेंसी ओनली रेंजेस बिटवीन -π to π और 0 to 2π। तो मुझे इसमें समझ आ रही है, ये तो अब रेडियंस में बात हो रही है, इसको अगर हम हर्ट्स में लेके जाएं वहां पे तो वी हैव अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो हाउ कैन वी कंपेयर दिस विद, अगर मैंने हर्ट्स का एक लेना है वो एक्स एक्सिस का, तो उसकी भी कोई रेंज होगी एज सच कि इस रेंज से इस रेंज तक हर्ट्स में रहना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव द नाइक्वेस्ट क्या कहते हैं रेट। ठीक है, आपका क्वेश्चन वैलिड है, तो इसका आंसर भी हमारे पास मौजूद है, यानी हम सेमेस्टर के स्टार्ट से अब तक इस पे काफ़ी डिस्कशन कर चुके हुए हैं। हम ह्यूमंस मेरे ख्याल में नेचुरली हम हर्ट्स की टर्म में सोचते हैं कि कोई भी साइनोसाइड है तो आप और मैं हम यही बात कर रहे होंगे कि ये फर्ज किया कि 13 किलोहर्ट्ज का सिग्नल है, 17 किलोहर्ट्ज का सिग्नल है एंड सो ऑन। तो श्योर, तो वो जो हमारी नोटेशन है तो टेक्स्ट बुक की नोटेशन में दैट बिकम्स कैपिटल ओमेगा, लेकिन एक्चुअली जब आप फर्ज किया कि आप किसी यूएसआरपी को बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज हैं या कोई भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो है उसकी जब आप बैंडविड्थ या फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो इट ओनली अंडरस्टैंड्स द फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 0 to 2π या -π to π, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे लिए जो डेटा है दैट इज इमेजेस या वीडियोस, पिक्चर्स, टेक्स्ट, लेकिन जो कंप्यूटर्स हैं, जो प्रोसेसर्स हैं, दे ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बाइनरी नंबर्स, जीरोस और वंस। तो सेम केस यहाँ पे है। तो जब आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग करते वक्त आपको थोड़ा सा जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की जो लैंग्वेज है उसको समझना होगा। जैसे हमने बाइनरी नंबर्स क्यों सीखे, ताकि हमें पता चले कि जो मेमोरीज हैं और वो बाकी चीज़ें हैं हाउ डू दे ऑपरेट। तो सेम इज द केस हियर। तो डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग में अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक एक्साफैन है जिसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 13 किलोहर्ट्ज है, तो इट इज़ अ मीनिंगलेस थिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि 13 किलोहर्ट्ज वुड बी मीनिंगफुल नंबर फॉर एक्स ऑफ टी। कोई भी XCFT है उसके लिए होगा, XFN के लिए नहीं होगा। तो रफली स्पीकिंग यही है कि स्मॉल ओमेगा जो है इट इज वन सच नंबर जिसको आप कह लें कि वो नॉर्मलाइज हो चुका हुआ है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 0 से 100 तक हमारे पास नंबर्स हैं, फर्ज किया आप लोगों के रोल नंबर्स हैं और आप सब लोग अपने रोल नंबर्स को जो है वो 100 से डिवाइड कर लें, तो फिर क्या होगा कि आप सबका जो रोल नंबर है तो वो 0 और 1 के दरमियान एक नंबर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जिसका रोल नंबर पहले 73 था तो अब उसका रोल नंबर है 0.73। तो इस तरह का मामला है। तो यानी कि नॉर्मलाइजेशन हो गई है कैपिटल ओमेगा से स्मॉल ओमेगा पे जाते हुए। तो हमें कैपिटल ओमेगा समझ आता है, लेकिन जब हमने अपने रिजल्ट्स वगैरह को इंटरप्रेट करना है तो थोड़ी देर के लिए हमें समझना पड़ता है कि स्मॉल ओमेगा में क्या हो रहा है। तो कैपिटल ओमेगा में आपके पास जो रेंज थी फ्रिक्वेंसीज की वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी थी, यानी कि मेरे पास ऐसी फ्रिक्वेंसी भी हो सकती थी जो माइनस सम मिलियन नंबर हो कि 5 मिलियन, 6 मिलियन, या मिलियन को मेगा कहते हैं हम फ्रिक्वेंसी की टर्म्स में, कि -5 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी भी समझ में आती है, +10 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी भी समझ में आती है।
तो माइनस जो नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज हैं उनका अपना एक आप कह लें कि मसला है फॉर द बिगिनर्स टू अंडरस्टैंड कि उसको हम कैसे समझें, वो भी हम उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो पॉइंट है कि कैपिटल ओमेगा के लिए आपके पास रेंज है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो वो सारी रेंज जो है आप उसको मैप कर देते हैं डिस्क्रीट टाइम के केस में एक स्मॉल रेंज के ऊपर जो कि 0 to 2π है। और वो कैसे होती है, जो जिस भी रेट पे आप सैम्पलिंग कर रहे होते हैं तो वो फैक्टर जो है वो इस तरह का होता है कि उसके जरिए नॉर्मलाइजेशन हो जाती है। तो डिस्क्रीट टाइम में हमेशा आपके पास जो चीज़ आपने कंसिडर करनी है वो -π to π करनी है, और जब आप उसको नहीं समझ पा रहे हो तो आप ने जिस रेट पे सैम्पलिंग करके डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाया वो रेट जो है वो रिकॉल करें, और फिर स्मॉल ओमेगा को आप कैपिटल टी से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द कैपिटल ओमेगा। जो अभी कुछ अर्से पहले जो हमने इस तरह के प्रॉब्लम्स भी किए हैं जिसमें हमने ये जो इंटरप्रिटेशन है वो समझने की कोशिश की है कि मेरे पास कोई भी नंबर है कोसाइन 2π इंटू 1 मेगा और टी है, और फिर जब आप एक कैपिटल टी जो है वो चूज करते हैं मे बी विच इज 10⁻3, ठीक है, 1/10⁻3, और इवेंचुअली you guys are able to write the corresponding signal in discrete time। तो discrete time में जब आप आते हैं तो कैपिटल ओमेगा जिसकी रेंज आपके पास थी कैपिटल ओमेगा की रेंज आपके पास थी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, आपने सारी रेंज को कहाँ पे मैप कर लिया जब ये सैम्पलिंग वगैरह आपने की है, दिस होल रेंज गेट्स मैप्ड टू दिस स्मॉल सेट। तो ये मामला है, यानी ऑफ कोर्स कि आप इसको बार बार जब आप सोचेंगे तो यू विल गेट मोर क्लैरिटी। तो ये सारी जो फ्रिक्वेंसीज हैं कैपिटल ओमेगा की, तो दे गेट मैप टू स्मॉल सेट सबसेट इन स्मॉल ओमेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग। जब आप सैम्पलिंग करते हैं तो आप स्मॉल ओमेगा से कैपिटल ओमेगा के डोमेन में आ जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो मीनिंगफुल रेंज बनती है वो 0 to 2π बनती है। यानी कि मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक सिग्नल है कोसाइन ओमेगा एन, ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंसी मेरे पास है π/12, और फिर हम दोनों ही यही कहेंगे कि वी डोंट लाइक दिस वैल्यू क्योंकि हमें नहीं समझ आ रही कि इसका क्या मतलब है। तो फिर वही होगा कि वी हैव टू रिकॉल कि कौन सा कैपिटल टी हम लोगों ने चूज़ किया था, ठीक है, जब हमने सैम्पलिंग की थी। अगर वो ये कैपिटल टी था तो फिर आपने क्या करना है, यू हैव टू डिवाइड ओमेगा बाय कैपिटल टी, ठीक है, टू गेट कैपिटल ओमेगा, ठीक है। तो उस केस में यानी कि π/12 है और इंटू 10⁻3 है, तो फिर आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। तो ये जो चीज़ है दैट इज़ योर कैपिटल ओमेगा, और इसको फिर जब आप फर्दर 2π से डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास वो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी जो कि रेडियंस में है। तो ये हो गया आपके पास 1000 और डिवाइडेड बाय 24, तो ये आपके पास वो फ्रिक्वेंसी है जिसको आप हर्ट्ज में लिख सकते हो। तो ये ओके, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास कि अभी जो कुछ हमने सीखा है वो ये कि हम अपने सैम्पलिंग रेट को कैसे चेंज करें बाय एन इंटीजर फैक्टर। तो कैपिटल एल और कैपिटल एम बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन नेगेटिव इंटीजर्स भी नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो आप अपने सैम्पलिंग रेट को रिड्यूस कर सकते हैं बाय एन इंटीजर फैक्टर, या आप अपने सैम्पलिंग रेट को बढ़ा सकते हैं बाय इंटीजर फैक्टर। तो कई दफ़ा ये होता है कि आप चाह रहे होते हैं, आपको ज़रूरत पड़ती है, और डेफिनेटली इस तरह के मामला हैं। कम्युनिकेशन के कोर्स में शायद आप लोग ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हों, आई एम नॉट श्योर कि कौन से एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों ने यूएसआरपीज़ पे सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस पर परफॉर्म किए हैं, बिकॉज इट हैज़ बीन 2-3 years के आई हैवंट टॉट द कोर्स ऑन कम्युनिकेशन सिस्टम्स। लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स का जो कोर्स है विच इज़ ऑफर्ड इन द स्प्रिंग सेमेस्टर समटाइम्स, उसमें हम कई दफ़ा जो है वो एम ट्रांसमिशन वगैरह फिर दोबारा से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे कई दफ़ा में रैशनल रीसैम्पलिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कई दफ़ा आपने अपने सैम्पलिंग रेट को इनसाइड द रिसीवर फ्लो ग्राफ आपने चेंज करना होता है बाय रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब है कि आपके पास p/q टाइप का एक फैक्टर होगा, यानी कि पॉलिनोमियल होगा, न्यूमरेटर इज आल्सो इंटीजर, डिनोमिनेटर इज आल्सो इंटीजर। तो यहाँ पे भी यही मामला है। अब जो डिस्कशन हम करना चाह रहे हैं कि हमने इंडिविजुअल सेटिंग में डेसिमेशन को करना सीख लिया है, इंटरपोलेशन करना सीख लिया है,
टाइम डोमेन में भी हमें पता है कि हमने कैसे सैंपल्स थ्रो अवे करने हैं या जीरोस अपेंड करने हैं, और फ्रिक्वेंसी डोमेन में भी हमें पता है कि कैसे जो है वो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है वो स्ट्रेच होगा या श्रिंक होगा, और कैसे आपने एक्स एक्सिस वगैरह को स्केल करना है, और कब आपने लो पास फिल्टर लगा के डेसिमेशन के केस में आपने एलियासिंग को अवॉइड करनी है, और इंटरपोलेटर के केस में जो लो पास फिल्टर है इट विल बी यूज्ड टू रिमूव द एक्स्ट्रा कॉपी, या एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉपीज जो भी आपका कैपिटल एल होगा। तो इंडिविजुअल सेटिंग में हमें पता है, अब कंबाइंड सेटिंग में हम देखना चाह रहे हैं कि फर्स्ट क्या कि समवन सेज कि आप में से कोई कहता है कि आई वांट टू चेंज द सैम्पलिंग रेट ऑफ माय सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट, एक्स ऑफ एन है, उसका कोई खास पर्टिकुलर सैम्पलिंग रेट है, तो उसको हम चेंज करना चाह रहे हैं बाय फैक्टर 1.01, ठीक है। तो आपने बहुत ही मामूली सी चेंज करनी है 1.01 को, तो यही मतलब है कि क्योंकि अदरवाइज पहले जो हम कर रहे थे, हम कह रहे थे कि सैम्पलिंग रेट जो है वो 2 टाइम्स कम कर दें, 3 टाइम्स बढ़ा दें, 4 टाइम्स कम कर दें, 6 टाइम बढ़ा दें, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि मैं सैम्पलिंग रेट चेंज करना चाह रहा हूँ बाय फैक्टर 1.01। तो स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा, 1.01 को आप रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख लें, दैट मीन्स के 101 डिवाइडेड बाय 100, दैट मीन्स के आपको जो है आपका जो सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट है, आप पहले उसको 100 टाइम्स जो है वो उसका सैम्पलिंग रेट बढ़ाएंगे, फिर आप जो है उसका सैम्पलिंग रेट 101 टाइम जो है वो डिक्रीज करेंगे। मतलब क्या है कि अगर आपने एक सिस्टम है जिसका सैम्पलिंग रेट आपने बढ़ाना है, चेंज करना है बाय फैक्टर 1.01, तो आप इंटरपोलेटर सिस्टम, ये मैं ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे शो कर रहा हूँ 428, तो यानी सबसे पहले आप अपने सिग्नल को एक इंटरपोलेटर में से गुजारें, ठीक है, जो आपके सैम्पलिंग रेट को 100 टाइम्स बढ़ा रहा हो, और फिल्टरिंग भी कर लें, सब कुछ कर लें, जो कि कंप्लीट इंटरपोलेटर सिस्टम होता है। उसके बाद फिर आप अपने सिग्नल को, जो इंटरपोलेटेड सिग्नल है, उसको आप डेसीमीटर ब्लॉक में से गुजारें, और अब की दफ़ा आप जो है वो जो सैम्पलिंग रेट है वो 101 टाइम डिक्रीज करें। तो जब आप 100 टाइम सैम्पलिंग रेट इंक्रीज करेंगे, 101 टाइम डिक्रीज करेंगे, तो जो नेट आपके पास इफेक्ट होगा तो वो ये होगा कि आपका सैम्पलिंग रेट जो है वो चेंज हो जाएगा बाय अ फैक्टर ऑफ 1.01। तो यहाँ पे उन्होंने चीज़ों को मार्क भी किया हुआ है कि इंटरपोलेटर ब्लॉक में जो दो सब ब्लॉक्स हैं, जो पहले वाला ब्लॉक है जहाँ पे आपको अप एरो के साथ कैपिटल एल नजर आ रहा है, तो ये वो ब्लॉक है जो जीरो पेंड करता है। जैसे ही आप जीरो पेंड करते हैं तो आपका जो सैम्पलिंग पीरियड है वो टी के बजाय टी डिवाइडेड बाय कैपिटल एल हो जाता है, यानी कि सैम्पलिंग पीरियड रिड्यूस हो जाता है, सैम्पलिंग रेट बढ़ जाता है। फिर जब आप लो पास फिल्टरिंग करते हैं तो रिडंडेंट कॉपीज जो हैं, L-1 रिडंडेंट कॉपीज जो हैं फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में, वो रिमूव हो जाती हैं, और टाइम डोमेन में जो जीरो वैल्यूड सैंपल्स थे वो नॉन जीरो वैल्यूड सैंपल्स बन जाते हैं। लेकिन जो XIFN है, जो इंटरपोलेटर ब्लॉक की जो फाइनल आउटपुट है, उसका सैम्पलिंग रेट जो है इट स्टिल रिमेन्स T डिवाइडेड बाय कैपिटल L। सैम्पलिंग रेट नहीं, सैम्पलिंग पीरियड। और फिर आप उसको डेसिमेटर ब्लॉक से करते हैं, तो डेसिमेशन में क्योंकि आपने सैम्पलिंग रेट कम करना है, तो आप प्री फिल्टरिंग करते हैं टू अवॉइड एनी पोटेंशियल एलियासिंग। तो एलियासिंग अवॉइड करने के लिए आप जब फिल्टरिंग कर रहे हैं, तो फिल्टरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रेट चेंज नहीं कर रहा है, तो फिल्टरिंग के आउटपुट पे भी जो रेट है या सैम्पलिंग पीरियड है इट रिमेन्स T डिवाइडेड बाय कैपिटल L। फिर जब आप उसको उस ब्लॉक में से गुजारते हैं विच इज डाउन एरो कैपिटल M, जिसको आप कंप्रेसर ब्लॉक कहते हैं कई दफ़ा, तो उसके बाद फिर आपके पास जो नेट आपके पास रेट आता है एट द आउटपुट, ये नेट सैम्पलिंग पीरियड आता है, तो दैट इज T मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M डिवाइडेड बाय L। तो ये चीज़ है। और फिर ये कि जब आप इस डायग्राम को काफ़ी देर तक देखते रहें गौर से, फिर आपको लगता है कि इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपके पास 4 सिस्टम्स हैं जो कि कैस्केड में है। एक अप एरो L जो सिस्टम है, फिर एक लो पास फिल्टर है जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पाई बाय एल है, फिर एक और लो पास फिल्टर है जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पाई बाय एम है, और फिर एक ब्लॉक है विच इज डाउन एरो कैपिटल एम जो कि कंप्रेसर ब्लॉक है। तो यू गाइस रियलाइज के ये जो दो लो पास फिल्टर्स हैं जो कि कैस्केड में लगे हुए हैं, तो इनको हम कंबाइन कर सकते हैं इनटू वन लो पास फिल्टर। एक लो पास फिल्टर है जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पाई बाय एल है, फिर आप सेम सिग्नल को दोबारा लो पास फिल्टर कर देते हैं विद कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पाई बाय एम, तो आप दोनों लो पास फिल्टर्स को मर्ज करके एक ही लो पास फिल्टर बना सकते हैं। और आप थोड़ा सा अपने जहन में सोचें कि मेरे पास कोई भी आर्बिट्रेरी सिग्नल है, मैंने उसको एक लो पास फिल्टर में से गुजारना है जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पाई बाय एल है, फिर मैंने सेम सिग्नल जो आउटपुट है उसको मैंने लो पास फिल्टर से गुजारना है जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पाई बाय एम है। तो आप एक तो ये कि दो लो पास फिल्टर को मर्ज करके एक ही लो पास फिल्टर बना सकते हैं, और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि जो
कंबाइंड जो लो पास फिल्टर होगा उसकी ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। जैसे वंस अगेन अभी हम डिस्क्रीट टाइम में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए चीज़ों को आप कह लें कि कंटिन्यूस टाइम में समझना इजी होता है। जैसे मैं अब आपको थोड़ी देर के लिए एक नॉन रिगोरस एग्जांपल अगर मैं दूं, तो वो यही होगा कि मेरे पास एक यानी कि दो लो पास फिल्टर कैस्केड में लगे हुए थे। एक फिल्टर ने जो है वो 10 किलो हर्ट्ज से की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी रखी हुई है, जो नेक्स्ट लो पास फिल्टर है उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है, 12 किलो हर्ट्ज। तो इवेंचुअली जो भी सिग्नल हमारे इन दो लो पास फिल्टर के कैस्केड में से गुजरेगा, तो कौन सा लो पास फिल्टर ज्यादा इफेक्टिव होगा? वो लो पास फिल्टर इफेक्टिव होगा जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कम है, क्योंकि 12 किलो हर्ट्ज कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वाला जो लो पास फिल्टर है वो कुछ फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स निकाल देगा, लेकिन फिर जो 10 किलो हर्ट्ज कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वाला फिल्टर है वो 10 किलो हर्ट्ज से ऑनवर्ड जितने भी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स थे उसने उनको डिस्कार्ड कर देना है। तो यानी जब आपके पास एक से ज्यादा लो पास फिल्टर कैस्केड में लगे हों, तो कौन सा लो पास फिल्टर इफेक्टिव होता है? यानी कि आप बाकी सारे लो पास फिल्टर हटा सकते हैं, यानी सिर्फ वो लो पास फिल्टर इफेक्टिव होता है जिसका कट ऑफ सबसे ज्यादा शार्प हो, यानी कि सबसे कम हो। तो यहाँ पे दो लो पास फिल्टर कैस्केड में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आप मिनिमम देखेंगे कि पाई बाय एल और पाई बाय एम में से मिनिमम कौन सा है, तो वो आप लो पास फिल्टर यूज करेंगे विद दैट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो इवेंचुअली ये फिगर 4 to 8 में जो बी जो ब्लॉक डायग्राम है, जो नीचे वाली ब्लॉक डायग्राम है, दैट इज काइंड ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन फॉर रैशनल रीसैम्पलिंग, ठीक है, जिसमें आप नॉन इंटीजर फैक्टर के जरिए अपने सिस्टम का सैम्पलिंग रेट चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे वंस अगेन यहाँ पे हम स्केचिंग करना चाहेंगे, ठीक है, टू इलस्ट्रेट दिस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे अब इस रैशनल रीसैम्पलिंग के लिए हमारे पास स्केचिंग हुई है। तो रैशनल रीसैम्पलिंग पहले हम देख लेते हैं एग्जांपल के टेक्स्ट से कि व्हाट इज द नंबर। अब मैं यहाँ पे नेविगेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई जस्ट वांट टू स्पीड अप अ बिट, अदरवाइज नहीं हम हर चीज़ लिख के कर सकते हैं, बट इट कंज्यूम्स मोर टाइम। तो सम टाइम आई ओकेजनली स्विच टू just narrating the things from the textbook. I hope कि that's okay. तो यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम जो सैम्पलिंग रेट है वो हम चेंज कर रहे हैं बाय अ फैक्टर, जो सैम्पलिंग पीरियड है वो हम चेंज कर रहे हैं बाय फैक्टर 3/2, ठीक है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ आपने कंपेयर करना है। जैसे फिगर 4 to 8 बी जो है, दैट फिगर वो विल प्रोवाइड टू यू। अगर यानी कि हम आपसे इससे मुतालिक कुछ पूछते हैं तो डेफिनेटली ये ब्लॉक डायग्राम हम आपको देंगे। तो वी आर नॉट आस्किंग यू गाइस टू मेमोराइज एनीथिंग, सिर्फ उसकी यूटिलाइजेशन हमें चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो ब्लॉक डायग्राम है फिगर 4 to 8 बी, इसमें क्या हो रहा है कि जो सैम्पलिंग पीरियड अल्टीमेटली जो चेंज होता है तो वो कौन से वेक्टर से चेंज होता है? टी प्राइम्स इक्वल टी टाइम्स एम डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो अब अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने कैपिटल एम को 3 चूज किया है, स्मॉल कैपिटल एल को मैंने 2 चूज किया, तो दैट मीन्स के मैंने अपने सिग्नल को इस तरह से रीसैम्पल किया है कि 3 टाइम्स मैंने रेट रिड्यूस किया और 2 टाइम्स मैंने रेट इंक्रीज किया। और जिस तरह ये ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है तो हम इंटरपोलेशन पहले कर रहे हैं जस्ट बाय कन्वेंशन, ठीक है। इसमें और कोई चीज़ स्पेशल नहीं है। आप इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं, बट देन यू नीड टू बी कॉशियस क्योंकि दीज आर मैथमेटिकली गवर्न प्रोसीजर्स। यानी अगर आप इनको आगे पीछे वैसे कर देंगे, आप कहेंगे मेरा दिल कर रहा है कि मैं डेस्टिनेशन पहले कर लूँ इंटरपोलेशन बाद में कर लूँ, तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो इफ़ यू नो द मैथमेटिकल इनसाइट्स बिहाइंड देम तो फिर आप कर सकते हैं। तो ये जो ब्लॉक्स की जो स्विचिंग है इनको आगे पीछे लेके जाना है, तो ये चीज़ भी अगले लेक्चर में आनी है, जिसको जो डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे अंडर द नेम पॉलीफेज डिकम्पोजिशन। तो उसमें इस तरह की चीज़ें नजर आएंगी। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे टीजर देने की कोशिश कर रहा हूँ फिगर 430 में, कि ओरिजिनली जो डेसीमीटर ब्लॉक था वो आपने कैसे समझा था कि आप जो है वो ये जो बी जो डायग्राम है उसको हम कर रहे थे कि हम पहले एक फिल्टर लगाएं, प्री फिल्टरिंग करें एंटी एलिसिंग फिल्टर के जरिए, और उसके बाद फिर हम सैंपल्स ड्रॉप करें, ठीक है। तो ये हमारे पास 430 बी का मामला है। फिर कई दफ़ा ये होगा कि आप कहेंगे कि आई वांट टू स्वैप दीज ब्लॉक डायग्राम्स, कि मैं पहले सैंपल्स जो हैं वो ड्रॉप कर लूँ ताकि मेरे पास सैंपल्स कम हो जाएं, और फिर फिल्टरिंग करूं ताकि मेरे पास कंप्यूटेशन कम हो जाए। तो फिर ये जो दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट कैसे होंगी? जो भी आप फिल्टर यूज़ कर रहे होंगे उसमें आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन ऑथर ने अब एक नई नोटेशन भी यूज़ करना शुरू कर दी है। पहले हम फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स के लिए नोटेशन यूज़ कर रहे थे H e to j ओमेगा। अब ऑल ऑफ अ सडन आपको H of z नज़र आ रहा है, तो z ट्रांसफॉर्म की नोटेशन यूज़ होना शुरू हो गई है। तो
दैट इज काइंड ऑफ आप कह लें कि फर्स्ट यूज ऑफ जी ट्रांसफॉर्म इन सम प्रैक्टिकल डीएसपी प्रॉब्लम्स। यानी इससे पहले हमने जी ट्रांसफॉर्म पे काफ़ी टाइम लगाया है, लेकिन उस वक्त हम जी ट्रांसफॉर्म को बिल्कुल क्लासरूम सेटिंग में देख रहे थे कि जी ट्रांसफॉर्म हमने समझनी है। तो अब जब हम अगले लेक्चर से बात करेंगे यानी कि थर्सडे से, तो हम देखेंगे कि जी ट्रांसफॉर्म जो है उसकी जो एक्चुअल यूटिलाइजेशन है इन प्रैक्टिकल डीएसपी सिस्टम्स, जो मल्टी रेट डीएसपी सिस्टम्स हैं, वहाँ पे आना शुरू हो जाएगी कि जी ट्रांसफॉर्म के जरिए आपके लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। तो यू गाइस माइट बी ऑफ द ओपिनियन के थिंग्स आर डिफिकल्ट, बट आई कैन अश्योर यू के अगर ये सब जो एनालिसिस है या टूल्स हैं, अगर ये ना हो तो लाइफ इज इवन मोर डिफिकल्ट। तो वी विल नॉट बी एबल टू से एनीथिंग अबाउट द डीएसपी सिस्टम्स वी आर गोइंग टू टैकल। ठीक है, तो ये जो कुछ भी है, तो ऑल दीज टॉपिक्स और ये जो भी हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो दे गिव अस इनसाइट अबाउट द सिस्टम्स वी डील विद। तो ये हम इस पे वापस आएंगे यानी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम ये ब्लॉक्स को रीशफल करना देखेंगे। अभी के लिए हम इसी सिस्टम पे रहेंगे कुछ देर, और मेरे ख्याल में अगले लेक्चर में भी थोड़ा टाइम हमें इस पे लगाना पड़ेगा। फिगर 2.8 में जो हमारे पास सिस्टम है, जहाँ पे हम रैशनल रीसैम्पलिंग करना चाह रहे हैं बाय अ फैक्टर। ये जो टी प्राइम है, जो नया सैम्पलिंग रेट है, हाउ इज इट रिलेटेड टू द न्यू द ओल्ड सैम्पलिंग रेट टी, तो टी एम डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, तो फिर जब हम आपको कैपिटल एम और कैपिटल एल स्पेसिफाई कर दें, हम आपसे कहें कि ये जो फिगर 428 है, इसमें हर स्टेप पे जो आउटपुट है वो उनके फ्रिक्वेंसी डोमेन स्केचेस आप हमें दें, तो वो फिर कई दफ़ा आपको करना पड़ेगा होमवर्क में, एग्जाम में कि एक्स ऑफ एन है तो उसका स्पेक्ट्रम एक्स ई टू जे ओमेगा वो बनाए। इंटरपोलेशन जब आपने कर लिया बाय फैक्टर ऑफ एल, तो एक्स ई ऑफ एन, ठीक है, उसका जो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो बनाए। फिर जब आपने लो पास फिल्टरिंग कर लिया, तो एक्स आई टिल्डा आपको आउटपुट पे मिल रहा है, तो उसका जो स्पेक्ट्रम है वो बनाए। और फिर जब आपने डेसिमेशन कर लिया बाय फैक्टर ऑफ एम, ठीक है, तो फिर उसका जो स्पेक्ट्रम है कैपिटल एक्स डी टिल्डा, तो वो आप बनाए। वो सारे स्पेक्ट्रम्स जो हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं इन फिगर 4 to 9 फॉर पर्टिकुलर एग्जांपल। जब आपने कैपिटल एल को